Assalamualaikum everyone. I hope you can hear me and you can see the screen as well. Please confirm if you can hear me and if you can see the slides. Yes, sir. Thank you. Actually, so today we will delve further on comparative politics. हम उसमें से तीन topics जो हैं उनको cover करेंगे, which includes the civil society, gender and politics, and the women empowerment. Women empowerment को हम देखेंगे across the globe, what has been done in terms of women empowerment, and also we'll sort of look at the women empowerment in Pakistan. So comparative politics with these three topics we will be covering. Yesterday we had done political socialization and political culture. We'll also look at some of the past papers and the questions that has been asked from the comparative politics section. And then we will also cover in detail political participation, which includes the elections and electoral systems, public opinion kya hota hai, how is it manifested, what is the importance of public opinion, and we'll also talk about the political parties. We'll also look at the political parties in Pakistan, and we'll also cover propaganda and pressure groups, or they're also called the interest groups. So starting off with the comparative politics and civil society. Now आप लोगों ने बहुत दफ़ा न्यूज़पेपर्स में सुना होगा, न्यूज़ चैनल्स पे सुना होगा कि सिविल सोसाइटी को डिफरेंट इश्यूज के ऊपर जो है सिविल सोसाइटी को बाहर निकलना चाहिए, उसके बारे में बात करनी चाहिए, so that issues could be resolved. Whenever we talk about आप अब इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, if in 2008 we saw Chief Justice Iftikhar Chaudhry in Pakistan, who was Chief Justice of the Supreme Court, um, and he was suspended. तो उसके बाद हुआ ये कि the civil society, which basically included the lawyers such as Etizaz Ehsan, Ali Ahmed Kurd, these lawyers, they came out on the streets and they protested that why President Musharraf has sort of suspended these judges. ठीक है जी, because Chief Justice Iftikhar Chaudhry had refused to give assent to President Musharraf's rule. अब this is essentially an example of civil society members coming out on the streets and fighting for the rights of their own selves, or for a certain cause. सिविल सोसाइटी जो है वो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सिविल सोसाइटी के अंदर कौन कौन से लोग इंक्लूडेड होते हैं, बट what you need to know is that civil society is of absolute paramount importance in order for democracy to work. सिविल सोसाइटी में राइटर्स भी आते हैं, कॉलमनिस्ट भी आते हैं, आर्टिस्ट भी उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, थिंक टैंक्स भी उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं. So it comprises of various sections of the society, and they fight for a certain cause. They are supposed to stand up when democracy is in shambles. जब भी democracy hurt होती है किसी भी country के अंदर, तो उसको जो fight off करने के लिए जो organization है, that is the civil society organization. सिविल सोसाइटी की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो फर्स्ट पॉइंट में लिखी हुई है, द realm of organized social life that is voluntary, autonomous from the state and bound by a set of shared values. यानी कि मैं या आप, हम सब सिविल सोसाइटी का पार्ट बन सकते हैं वॉलंटरीली या वॉलंटरी बेसिस के ऊपर, जिसका स्टेट के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. लेट्स से हम सब एक सिविल सोसाइटी का पार्ट हों और हमारे मुल्क में अगर एक मार्शल लॉ लग जाता है, ठीक है, हमारे मुल्क में फोर टाइम्स ऑलरेडी मार्शल लॉ लगा है, लेट से एक दफ़ा दोबारा मार्शल लॉ लगता है, तो हम सब मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वी विल नॉट लेट दैट हैपन, एंड वी विल गो आउट इन द स्ट्रीट्स एंड वी विल डू प्रोटेस्ट. अभी आप अगर न्यूज़ फॉलो करें, एंड आई होप यू आर फॉलोइंग द न्यूज़, बिकॉज आप लोगों की जो सीएसएस प्रिपरेशन है उसमें ना सिर्फ डॉन बल्कि जो इंटरनेशनल न्यूज़ पेपर्स है सच एज बीबीसी, CNN, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू योर प्रिपरेशन. तो अगर आप लोगों ने CNN को रिसेंटली फॉलो किया हो, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रही है अबाउट बेलारूस. अब बेलारूस में कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जहां पर अगर नहीं फॉलो करें तो जस्ट गो ऑन
अल जजीरा या CNN या BBC की वेबसाइट पर आप ये देख सकते हो। डॉन में भी शायद इंटरनेशनल बेसिस के अंदर इसके ऊपर कोई कवरेज स्टोरी आई हो, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हो ये रहा है कि बेलारूस के अंदर जो प्रेसिडेंट है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि ही शुड स्टेप डाउन। ठीक है, लार्ज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी आर कमिंग डाउन इन द स्ट्रीट्स। उसमें से कुछ प्रोटेस्टर्स को फिर द बेलारूस गवर्नमेंट डिसाइडेड टू पुट देम इन prisons as well. But the fact that people are coming out on the streets, people are some those who have access to newspapers, they are writing in the newspapers as well. तो जब ये सारी जो मूवमेंट ऑर्गेनाइज की जा रही है, तो ये बेसिकली एक सेट ऑफ शेयर्ड वैल्यूज के ऊपर है कि एंड सेट ऑफ शेयर्ड डिमांड्स के ऊपर है कि वी वांट टू गेट रिड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस। ठीक है जी। सो इस तरह से जो डिफरेंट मूवमेंट जो है वो जब ऑर्गेनाइज की जाती हैं फॉर अ सर्टेन कॉज, उन मूवमेंट्स को जो है वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइज करती है। Whenever a question about civil society comes, you will write this definition: the realm of organized social life that is voluntary, autonomous from the state, and bound by a set of shared values. And as I've told you many times before, that whenever you are attempting a question of political science, always sort of quote some philosophers or quote some intellectuals who have written about the subject. So Joseph Schumpeter, and his book is titled Capitalism, Socialism, and Democracy. He has talked about civil society, and he has also mentioned how that is absolutely essential for democracy. A successful functioning democracy cannot survive without the civil society. अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि various sections of society and people comprising of diverse professions can be a part of the civil society. Students, yani ke people like you, me, writers, those who write in the newspapers, in blogs, in magazines, in tabloids, artists, because they also sort of influence the public when they appear in ads, when they make new movies, or when they act in a theater. So artists as well as teachers, which includes people like me, and the teachers in the schools and colleges, because they have the knowledge about a relevant subject domain. All of them are part of the civil society. Some observers consider the activity of NGOs as civil society. NGOs कौन सी होती हैं? For example, Asia Foundation, Save the Children. These are all examples of NGOs. Some observers consider the activity of NGOs as civil society, while others include all forms of participation which is voluntary to be civil society. For example, अगर आप में से let's say मुबस्सिर जो हैं, if he goes out and writes an article on let's say COVID-19 and how the government has responded towards the COVID-19. For example, मुबस्सिर अगर एक न्यूज़पेपर के अंदर ये लिखते हैं कि जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर बनाया गया इन रिस्पांस टू द कोविड पेंडेमिक, दिस नीड्स सर्टेन इम्प्रूवमेंट्स, इसके अंदर जो कराची और फेडरल के बीच में जो एक टसल चल रही है, दिस शुड नॉट बी देयर. So what Mubassir is actually doing, he's part of the society and he's writing in a newspaper and he's being vocal about it. Now nobody is paying him for that. It is a completely voluntary act. तो जो भी voluntary act होता है जिसका स्टेट से कोई ताल्लुक नहीं होता और जिसके अंदर कोई सेट ऑफ शेयर्ड वैल्यूज इन्वॉल्व होती हैं, वो सिविल सोसाइटी होती है. ठीक है जी. द सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और CSOs. Civil society includes public who are vocal about a specific issue. Civil society is absolutely essential for consolidation of democracy in a country. So इस पॉइंट को कि हाउ दे आर इम्पोर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी मैं यहाँ पर दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा व्हेन आई टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ सिविल सोसाइटी. So normally a question in the civil service exams comes where they ask you about ask you to write a note on civil society, or they ask you how civil society can contribute in the prosperity of a country. So इसके अंदर आप जो है ना सिविल सोसाइटी का इंट्रोडक्शन जो पिछली स्लाइड है वहां से करवाने के बाद, जोसेफ शम्पीटर को कोट करने के बाद, आप ये फंक्शंस ऑफ सिविल सोसाइटी जो है इनको याद रखेंगे. So number one is democratization of authoritarian states. So in order to explain this point, let me give you the example of the Arab Spring. Arab Spring happened in 2011. अच्छा, उससे पहले लीबिया के अंदर मुअम्मर कज़ाफी was the leader. सीरिया के अंदर still Bashar al-Assad was the leader. Similarly in Egypt, Hosni Mubarak was the leader. So ये जो बड़ी नॉर्दर्न अफ्रीका की जो कंट्रीज थी,
और जो मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज थी, वहां पर एक अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एग्जिस्ट करती थी. दे वर एसेंशियली डिक्टेटर्स एंड देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है जी. तो सिविल सोसाइटी ने क्या किया 2011 में, यूजिंग सोशल मीडिया. उस टाइम तक फेसबुक जो है वो परवेसिव हो चुका था सोसाइटी के अंदर. फेसबुक के ऊपर एक इवेंट क्रिएट किया गया कि वी वांट टू ऑर्गेनाइज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरब रूलर. और जब वो प्रोटेस्ट हुआ तो उसके बाद पीपल वर विलिंग टू डाई फॉर द प्रोटेस्ट एंड दे वांटेड टू हैव डेमोक्रेसी इन दैट कंट्री. तो अरब स्प्रिंग जो था वो बेसिकली सिविल सोसाइटी की एक काविश के बाद जो है वो हुआ. और उसके बाद अब हम देखते हैं कि कुछ कंट्री में तो अभी भी जैसे इंस्टेबिलिटी है, बट आहिस्ता आहिस्ता वहां पर इलेक्शंस होना शुरू हुए. सो 2011 के अंदर एक कंप्लीट चेंज हमने देखा और वो सिविल सोसाइटी ने किया, विच कवर्स द फर्स्ट पॉइंट विच इज democratization of authoritarian states. So we see that happening. Similarly, 1986 के अंदर मनीला में, फिलीपींस में, there was a protest, and the ruler at that time was ousted from power by the civil society members who thought that when the elections happened, the ruler who came and became the president of Manila, he was the one who was not sort of coming through the proper channel. तो उन्होंने they organized these protests and they sort of stood up against the leader. Okay, so number one point is democratization of authoritarianism. Number second is consolidation of democracy. So for example, जैसे मैंने अभी example दी that if someone writes a column in a newspaper and sort of criticizes the government's response to the COVID-19 pandemic, what he or she is essentially doing is कि वो democracy को consolidate करने में help कर रहे हैं. In the sense that it is a right for you to go out and sort of बी इन अ प्रोटेस्ट. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल 9 से आर्टिकल 28 तक फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, which includes right to speech, right to information, right to movement, right to assembly, right to association. ये सारे rights, right to life, right to private property, ये सारे rights जो है वो every citizen of Pakistan has been granted in the constitution of 1973. अब ये जो राइट्स हैं, इनके लिए whenever you want to sort of write about it or whenever you want to organize a protest, तो आपको ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. तो अगर आप डेमोक्रेसी के किसी भी कॉज के लिए जो है स्ट्रीट्स पर आते हो, न्यूज पेपर्स में लिखते हो, कोई प्ले प्ले रिकॉर्ड करते हो और उसको जो है यूट्यूब पर नेट से चला देते हो या किसी मूवी में एक्ट करते हो, तो वो सारी चीजें वो जो है वो डेमोक्रेसी को कंसोलिडेट करने में हेल्प करती हैं, बिकॉज आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर अलाउ किया गया है. Number three is development of democratic attributes such as tolerance and respect. So democracy, मेरी नज़र में पाकिस्तान में 4 मार्शल लॉज लगे, मोर देन 30 years हमारे मुल्क में मार्शल लॉ लगे. और उसका मैं अगर समराइज करूं कि उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था, तो वो मेरी नज़र में डेमोक्रेटिक एट्रीब्यूट्स का ना होना था, which includes values such as tolerance and respect for different point of view. अब for example, if I and let's say Ali sort of disagree on something, ठीक है जी? हमारे बीच में एक डिसएग्रीमेंट होता है, और डिसएग्रीमेंट इस सेंस में होता है कि आई हैव अ सर्टेन व्यू पॉइंट. जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस. अच्छा जी. तो आई वाज डिस्कसिंग हाउ पाकिस्तान में जो भी मार्शल लॉज जब भी लगे, डेमोक्रेसी जो है वो अपने पाथ से डी ट्रैक हुई, उसके पीछे हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक एटीट्यूड का ना होना है, which includes tolerance, the fact that they someone can have a completely different point of view. For example, अगर मैं ये कहता हूँ कि let's take the example of Hindu temple, and if I for example say that minorities को उनके rights मिलने चाहिए और पाकिस्तान में एक हिंदू टेम्पल बनाने में कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज देखें, आप जब इंडिया में कंप्लेन करते हैं कि इंडिया में बहुत ज्यादा मुस्लिम्स को अनाहिलेट किया जाता है, दे हैव टू सफर दीस एट्रोसिटीज बिकॉज वहाँ पर हिंदू मेजोरिटी है. इसी तरह से हम ये कंप्लेन करते हैं कि जैसे जर्मनी जैसे जो मुल्क हैं, या यूएस की अगर बात करें, जहाँ पे अभी रिसेंटली ब्लैक लाइव्स मैटर वाली कैंपेन चल रही है, वेयर जॉर्ज फ्लॉयड वाज sort of strangled to death.
Now there's a campaign going on where the people are standing up against this prejudice, right? So अब हो ये रहा है कि मैं ये कहता हूँ कि यार जिस तरह हम बाकी मुल्कों में ये बात करते हैं, इवन रिसेंटली ये बात हो रही थी कि ईद के लिए जर्मनी में बर्लिन के अंदर मॉस्क बननी चाहिए ताकि मुसलमान जो है वो ईद की नमाज पढ़ सकें, ठीक है जी। लेकिन जब हम अपने मुल्क में इस्लामाबाद में एक हिंदू टेंपल बनने की बात होती है तो वी अपोज दैट, ठीक है, एंड ऑल द रिलीजियस conservative elements sort of come out and they oppose that act of government or that intention of government. Now if I say that कि वो हिंदू टेंपल बनना चाहिए और कोई दूसरा बंदा मुझे बजाय टॉलरेंस के साथ मेरे व्यू को एक्सेप्ट करने के या रिस्पेक्ट करने के वो they counter me by very provocative statements, and this they also would like to criticize me and give me threats कि यार why am I saying कि हिंदू टेंपल बनना चाहिए. So that means कि हमारे मुल्क के अंदर अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, टॉलरेंस नहीं है फॉर अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. और यही चीज जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर एग्जिस्ट करती है. अब नेशनल असेंबली के अंदर अगर 342 सीट्स हैं उसमें से पीटीआई की जो है इट्स बियरली 51%, ठीक है जी. तो आधे से ज्यादा सीट जो है बड़ी मुश्किल से पीटीआई ने पूरी की विद एमक्यूएम के साथ अलायंस करके, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जीडीए के साथ अलायंस करके पीटीआई ने अपनी गवर्नमेंट बनाई. अब मसला ये है कि जो बाकी की सीट्स हैं, फॉर एग्जांपल 342 में से अगर 170 प्लस पीटीआई की हैं तो बाकी जो 150 और सीट्स हैं वो सीट 160 और जो सीट्स हैं वो दूसरी पार्टीज की हैं, विच इंक्लूड्स पीएमएलएन, अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी. अब मसला ये है कि इनके भी कुछ व्यूज होंगे किसी भी इशू के ऊपर, लेकिन अगर हमारे मुल्क में डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है और हम दूसरे की बात को नहीं समझ सकते, ना अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, ना उसको टॉलरेट करते हैं, तो फिर मसला ये आता है कि डेमोक्रेसी ऐसी कंट्रीज के अंदर थ्राइव नहीं करती है. तो जो सिविल सोसाइटी, अब मैं वापस उस पॉइंट पे आ रहा हूँ, पॉइंट नंबर 3 पे, कि सिविल सोसाइटी का ये फंक्शन भी है कि वो ऐसे एट्रीब्यूट्स यानी कि टॉलरेंस और रिस्पेक्ट को जो है वो डेवलप करे. इन रिस्पेक्ट इन एट्रीब्यूट आप डेवलप कर सकते हो बाय सॉर्ट ऑफ allowing that debate, by providing a platform where people can. I think someone's mic is on, so I'll just take the liberty to. उमेशा आपका माइक ऑन था. अच्छा, सो अब आप अगर न्यूज़पेपर में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज को एक्सप्रेस करते हो, डिफरेंट ओपिनियंस को लिखते हो, सिमिलरली आप ऐसे डिबेट्स ऑर्गेनाइज करते हो जहां पे अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो डिस्कस किए जाएं, तो ये सिविल सोसाइटी का एक फंक्शन है कि इट शुड प्रोवाइड दीज प्लेटफॉर्म्स so that these democratic attributes they flourish. Number fourth is articulation and representation of interest. So for example, um, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि बेलारूस के अंदर अभी आप रिसेंटली अगर आपने न्यूज़ नहीं फॉलो की तो रीड अप ऑन दैट. सो बेलारूस में ये हो रहा है कि वहां पर देयर आर प्रोटेस्ट गोइंग ऑन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट एंड दे फील दैट president was elected ingenuinely and the people are coming out on the streets to fight his election. उसके बाद कुछ लोगों को जेल में भी डाला गया and I was watching the news today and some of them have been released today, but there are protests going on in Belarus, ठीक है जी. अब ये जो लोग निकल रहे हैं दे हैव एन इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट ये है कि दे वांट द प्रेसिडेंट टू रिजाइन, दे डोंट डू नॉट एक्सेप्ट हिम एज देयर लीडर. नाउ दिस इज एन इंटरेस्ट फॉर व्हिच दिस सिविल सोसाइटी इज कमिंग आउट एंड दे आर आर्टिकुलेटिंग एंड रिप्रेजेंटिंग देयर इंटरेस्ट. तो सिविल सोसाइटी का एक और फंक्शन क्या हुआ? आर्टिकुलेशन एंड representation of interest. Number fifth is training of new political leaders. So if anybody wants to join politics, they can join a civil society, they can join and be vocal about specific issues. तो जैसे हमने अभी सिविल सोसाइटी को डिफाइन किया था ना कि इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड सोशल लाइफ दैट इज वॉलंटरी, ऑटोनोमस फ्रॉम द स्टेट एंड बाउंड बाय अ सेट ऑफ शेयर्ड वैल्यूज. तो वो जो कोई भी इंसान है वो पॉलिटिकल लीडर बनना चाहता है, दे कैन जॉइन सिविल सोसाइटी, डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट इश्यूज एंड आल्सो सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड हाउ टू स्पीक अबाउट दोस इश्यूज एंड देन दे कैन बिकम लीडर्स. सो एक और फंक्शन ये है कि वो ट्रेनिंग, सिविल सोसाइटी जो है वो ट्रेन करती है पॉलिटिकल लीडर्स, नए पॉलिटिकल लीडर्स को पैदा करने में, जनरेट करने में. Number six is they bring about reforms in legislature and judiciary. So, for example, there is a bill passed, and the bill is something that a large section of society goes against. अभी पंजाब में एक bill pass हुआ. I hope some of you remember that. This was about. Um, I cannot recall the exact name of the bill, but it was something like तहफ़्फ़ुज़-ए-इस्लाम bill. अच्छा, अब ये जो, बल्कि let me just
check that. I think it was तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम बिल जो पंजाब असेंबली ने पास किया है। अच्छा, इस बिल के ऊपर जो है ना बाद में बहुत बैकलैश आया, क्योंकि इस बिल के मुताबिक दिस वाज क्रिटिसाइज्ड एज अ बिल दैट वाज वेरी फंडामेंटलिस्ट और दैट वाज वेरी कंजर्वेटिव इन इट्स अप्रोच। ठीक है ना, कि आप इस्लाम को फर्दर जो है वो प्रोपेगेट करने के लिए सोसाइटी के अंदर ये बिल आया। अब जब इसके ऊपर बैकलैश आया, अब ये पंजाब असेंबली ने पास कर दिया, बट गवर्नर जो है पंजाब के मोहम्मद सरवर, उन्होंने अभी तक इसके ऊपर असेंट नहीं दिया, उसको साइन नहीं किया, इसलिए वो अभी तक लॉ नहीं बन सका। अब इसी इसी इसके बाद क्या हुआ कि जो जब ये बैकलैश आया, तो वो जो तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम बिल है, उसके ऊपर पंजाब असेंबली के जो एमपीएस थे, उन्होंने फिर इस बात से डिट्रैक्ट किया और उन्होंने कहा कि जी हमने ये हेस्ट के अंदर साइन इसको पास कर दिया है एंड वी वांट टू रीलुक एट दैट बिल। सो ये क्यों हुआ? क्योंकि सिविल सोसाइटी ने उसके ऊपर जो है वो प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट थ्रू न्यूज़पेपर्स, टॉक शोज। जब उन्होंने उसके ऊपर प्रोटेस्ट किया तो पंजाब असेंबली के एमपीएस ने रियलाइज किया कि दे मेड अ मिस्टेक एंड दे हैड, बल्कि एक तो पीटीआई के मेंबर ने ये भी कहा कि I was coerced into signing this and I was absolutely wrong in doing it. So he decided that he would sort of whenever the bill is presented again for voting, he will not vote in favor of the bill. तो आप देखो कि सिविल सोसाइटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। टॉक शोज के अंदर हम जो देखते हैं, रिसेंटली एक बहुत मशहूर एक टॉक शो हुआ जब ये औरत मार्च ऑर्गेनाइज की जा रही थी लाहौर में। आपको याद होगा, मारवी सरमद वाज ऑन अ टीवी चैनल एंड देयर वाज दिस पर्सन बाय द नेम ऑफ I don't Khalilur Rahman, if I'm not wrong, who writes for these famous dramas on in the local Pakistani channels. So they had this argument where this person Khalilur Rahman went below the belt and he started attacking the woman by commenting on her appearance, by commenting on her values. So that was very ugly. But what that woman Marvi Sarmad was actually representing, she was fighting for the women rights and she was being very vocal about those rights. तो वो जो रिफॉर्म्स हैं, कोई भी चीज़ अगर हो रही होती है, कोई कोई लेजिस्लेचर को आपने इम्पैक्ट करना है, कोई जुडिशरी को इम्पैक्ट करना है, तो वो जो आपको टीवी पर लोग नजर आते हैं जैसे मारवी सरमद, जैसे फॉर एग्जांपल बेलारूस की मैंने आपको एग्जांपल दी। सो ये लोग क्या कर रहे हैं कि दे वांट टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज एंड दे वांट टू इम्प्रूव और दे वांट टू रिफॉर्म द लॉज, दे वांट टू रिफॉर्म द जुडिशरी। इसी तरह द नंबर 7 फंक्शन इज द सपोर्ट और क्रिटिसिज्म फॉर एग्जीक्यूटिव एक्शन। सो एग्जीक्यूटिव ने कोई भी एक्शन लिया है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ टोनी ब्लेयर्स गवर्नमेंट इन द यूके। सो 2001 में आपको पता है 9/11 हुआ और 9/11 के बाद फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ये डिसाइड किया कि एंड ही गिव एन अल्टीमेटम टू ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड that you are either with us or you are against us. So he decided to invade Afghanistan, to invade Iraq, and sort of go hard at Al Qaeda and all these extremist, jihadist, hardcore मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है जी। अब जब इन्होंने ये किया तो उसके रिस्पांस में अब सिंस यूके इज एन एलाई ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सो यूके ने भी डिसाइड किया, उस वक्त टोनी ब्लेयर वाज द प्राइम मिनिस्टर। अब यूके ने भी डिसाइड किया कि वील आल्सो गो टू इराक एंड वील आल्सो सपोर्ट अमेरिकन फोर्सेस एंड वील गो एंड इन्वेड दिस कंट्रीज। अब हुआ ये कि यूके के अंदर इन लंदन स्पेशली large number of voters they came out and they sort of had these protests और उन्होंने कहा कि we will not support this and we want the government to withdraw their consent in joining the US forces। और उसके बाद क्या हमने देखा कि टोनी ब्लेयर को ये डिसीजन जो है वो वापस लेना पड़ा, बिकॉज लाखों की तादाद में लोग जो थे वो बाहर आए और 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर खड़े हुए, हाउस ऑफ कॉमन्स के बाहर खड़े, उन्होंने कहा कि वी विल नॉट allow you to send our forces to fight this war on terror। And then we saw that happening कि यूके पार्लियामेंट then had to withdraw their decision। तो आप ये देखो कि ये सिविल सोसाइटी की इंपॉर्टेंस है कि सिविल सोसाइटी जब स्ट्रीट्स पर आती है, जब वोकल होती है किसी इशू के ऊपर, तो एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो हैं जैसे कि टोनी ब्लेयर ने यहाँ पे लिया कि हम यूएस फोर्सेस को सपोर्ट करेंगे इन देयर पोस्ट 9/11 वॉर ऑन टेरर, तो सिविल सोसाइटी कैसे उसको सपोर्ट भी कर सकती है या क्रिटिसाइज भी कर सकती है और उसके अगेंस्ट खड़ी हो सकती है। सो ये सारे जो है ये सिविल सोसाइटी के फंक्शंस हैं। सो व्हेनेवर अ नोट ऑन सिविल सोसाइटी कम्स यू हैव टू राइट दिस फंक्शंस, और जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको चीजें बताई हैं
रिमेंबर दैट। अच्छा, और जोसेफ शम्पीटर की जो बुक मैंने आपको बताई है, डू कोट दैट, इफ यू वांट टू रीड अबाउट इट, यू कैन जस्ट रीड 2 or 3 पेजेस फ्रॉम दैट बुक एज वेल, एंड आल्सो ट्राई टू quote whatever is written in his book. ठीक है जी। So now moving to the gender and politics and women empowerment. So this is again a very important topic. Andrew Haywood in his treatise Politics has talked about gender and politics and women empowerment. So he has so Andrew Haywood ने क्या किया कि उन्होंने अपनी बुक के अंदर पूरी एक क्रोनोलॉजी बताई कि हाउ वुमेन गॉट देयर राइट्स। अब मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि 1893 में फर्स्ट टाइम जो है वुमेन को ये अलाउ किया गया कि दे कैन वोट। उससे पहले वुमेन वर नॉट इवन अलाउड टू गो आउट एंड वोट। दे वर नॉट अलाउड टू हैव अ से इन हु रूल्स देम। So उससे पहले women were confined to their kitchens, they were confined to their stereotypical roles, they were not allowed to vote and select leaders. अभी अगर मैं 21st सेंचुरी की बात करूं तो यहाँ पर अभी भी आई थिंक टिल 2011 वुमेन वर नॉट अलाउड टू ड्राइव देयर कार्स इन सऊदी अरेबिया। तो आप ये देखो कि वुमेन की जो पूरी जर्नी है टुवर्ड्स reclaiming their rights, it has been a very arduous and very long journey. They were never allowed the basic things. For example, a man was always allowed to vote, a man was allowed to participate in the government affairs. Women were not given those rights. फीमेल सफरेज जैसे मैंने पहले बताया कि दे इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन न्यूजीलैंड इन 1893। वुमेन को जो राइट्स हैं, अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो 1928 में जाके वुमेन को इक्वल वोटिंग राइट्स मिले। यानी कि पहले इनको 1918 में राइट्स मिले वुमेन को। और ये मैं आपको बता रहा हूँ यूएस और यूके की एग्जांपल्स, जो कि इस वक्त सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज हैं। सबसे बड़ी तो खैर इंडिया है, बट दे आर द वंस हु आर द डेवलप्ड इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। दे आर द democracies, they are the super powers. US is the super power, UK is a huge economic power, huge military power। और आप देखो कि यहाँ पर अभी 100 साल हुए हैं सिर्फ वुमेन को अपने राइट्स मिलने के। उससे पहले तक वुमेन के पास ये राइट्स नहीं थे। 1918 में वुमेन को ये राइट्स एक्सटेंड किए गए, बट इक्वल वोटिंग राइट्स विद मेन वो 1928 में मिले। वुमेन को यूएस के अंदर 1920 में राइट मिला कि वो वोट कर सकते हैं। तो आप ये देखो कि वुमेन जो है वो हमेशा से सब्जुगेटेड रही। और लेकिन इसी सेंचुरी के अंदर जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी बहुत हुई, और पॉजिटिव डेवलपमेंट्स ये हुई कि फिर a time came when Margaret Thatcher became the UK Prime Minister, who was the first female Prime Minister in the UK. She became the Prime Minister in 1980s. बेनजीर भुट्टो जो है वो यहाँ 1998 में she became the first female prime minister in the Muslim world. अच्छा, इसको थोड़ा करेक्ट कर लें, this is not 1998, this is 1988. So I think there is a typo. मोहम्मद खान जुनेजो was the prime minister from 1985 to 88, और फिर 88 में जो है वो बेनजीर भुट्टो जो है she became the prime minister of Pakistan. She was the first female prime minister in the entire Muslim world. इसी तरह हमने देखा कि यूएस विच इज द ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, वहां पर हिलरी क्लिंटन जो है representing the Democrats party, she ran and contested the elections against the President Donald Trump. Unfortunately, she lost the elections in 2016, but we see the rise of women and how women have, with the passage of time, become more involved in the state affairs. तो वो हमें नजर आया यूएस के अंदर। इसी तरह से moving on with this topic, gender stereotypes still widely exist. However, the population of women is huge in many countries, so female vote is one to be won, and hence political leaders across the globe are more vocal about issues related to women. अब देखो, जेंडर स्टीरियोटाइप्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, वो जो रोल्स हमने डिफाइन किए हुए हैं कि वुमेन आर सपोज टू स्टे एट होम, मेन आर सपोज टू गो आउट एंड दे हैव टू सॉर्ट ऑफ अर्न इनकम। अब ये स्टीरियोटाइप्स एग्जिस्ट करते हैं, बट एक चीज जो कोई भी पॉलिटिशियन इग्नोर नहीं कर सकता वो ये है कि मोर देन 50% जो है बहुत सी कंट्रीज के अंदर पॉपुलेशन जो है वो वुमेन की है। पाकिस्तान में अगर आप देखो तो मोर देन आई थिंक 53%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, I haven't seen the latest statistics, but more, do check that out. But I feel that around 53% population is women in Pakistan. So जहाँ पर 50% ज़्यादा population women की है, और पाकिस्तान की total population अगर 220 million है, तो आप देखो कि more than 110 million women पाकिस्तान के अंदर हैं। तो अगर आप इनको subjugate करके रखोगे, आप इनको education नहीं दोगे, आप इनको equal employment rights नहीं दोगे, basic utilities नहीं provide करोगे, the chances are that those women, their talents, their abilities will go to waste, and the country will fail to progress,
the country will fail to sort of grow economically and socially as well as politically. So ये important बहुत है. इसीलिए आप देखो कि अब जो एक और चीज हमने ऑब्जर्व की कि अब जो पार्टीज का मैनिफेस्टो देखते हैं, तो कभी आपको टाइम मिले, रीड द मैनिफेस्टो ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी. इन माय ओपिनियन इट्स द बेस्ट मैनिफेस्टो आउट देयर. पीटीआई का मैनिफेस्टो पढ़ो, आप पीएमएलएन का मैनिफेस्टो पढ़ो, इलेक्शन मैनिफेस्टो, तो आप उसमें देखोगे कि वुमेन को स्पेसिफिकली उनके लिए पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कराते हैं इन देयर मैनिफेस्टोस. तो वो इसलिए क्योंकि 50% ज्यादा पॉपुलेशन वुमेन की है, और अगर आप वुमेन का वोट इग्नोर करते हो क्योंकि दे आल्सो हैव द राइट टू वोट नाउ, तो फिर यू माइट एज वेल लूज द इलेक्शन. तो इसलिए वुमेन की एम्पावरमेंट के ऊपर अब पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान में भी बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड जो है उनके राइट्स के लिए जो है अब वो policies are sort of formed, they are formulated, and they try to implement those policies as well. Empowerment of women is essential to enable economy of a country to grow and to strengthen social roots in the country. Women empowerment is also part of the SDG. SDG जो है ये Sustainable Development Goals हैं. MDGs जो है वो 2015 में खत्म हुआ, उसके बाद Sustainable Development Goals बनाए गए from 2016 till 2030. उसमें वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत मेजर एलिमेंट है, एक बहुत मेजर गोल है. एंड पाकिस्तान इज आल्सो कमिटेड कि वो अपने मुल्क में जो है वुमेन एम्पावरमेंट को जो है वो encourage करेंगे. Private sector needs to be in alignment with the government to ensure women are recruited and there is no discrimination based on gender. So whoever is working in the corporate sector, I was working with Nestle, and let me give you a perfect a personal example. वहाँ पर ये होता था कि there were very strict laws. Uh, it was decided by Nestle's HR that they would not discriminate based on a person's caste, color, creed, or sex for that matter. यानी कि किसी भी का जेंडर की वजह से डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते हो. सिमिलरली अगेंस्ट वुमेन हरासमेंट जो है विद इन द कंपनी बहुत स्ट्रिक्ट लॉज जो थे वो बनाए गए थे. पाकिस्तान में भी वुमेन हरासमेंट के लिए प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एट एट वर्क प्लेस बिल जो है वो 2010 में पास किया गया व्हेन पीपल्स पार्टीज गवर्नमेंट वाज इन पावर. तो वी सी दैट वुमेन प्रोटेक्शन के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा रीसेंट डेवलपमेंट्स हमारे मुल्क में ज़रूर हुई हैं, बट देयर इज़ स्टिल अ लॉट ऑफ गैप एंड विच नीड्स टू बी कवर्ड. इस्लाम ने जो है वो वुमेन को राइट्स दिए 7th सेंचुरी के अंदर, जब प्रॉफिट पीस बी अपॉन की पर्सनल एग्जांपल्स में हमें नजर आता है कि हाउ ही सॉर्ट ऑफ हैड दैट कमराडरी विद द वुमेन. और उससे पहले जो है खवातीन को जो है जो जब बच्चियां पैदा होती थी तो उनको दफना दिया जाता था, बट प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम preached that all these practices they have to be shunned and women have to be raised like a boy. A girl has to be raised like a boy इन हाउस. तो ये इस्लाम में जो है हमें ऑलरेडी ये राइट्स जो है वुमेन को दिए हैं, बट मसला जो है वो हमारी कंट्रीज के अंदर और बहुत सी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का है. बेनजीर भुट्टो इज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ. सती ऑनर किलिंग स्टिल एन इशू इन द कंट्री. सो ये जो रिवाज हैं, जो रस्में हैं, ट्रेडिशंस हैं, फॉर एग्जांपल सती ऑनर किलिंग वेयर, और ये आपको बहुत ज़्यादा सिटिंग इन अर्बन एरिया, सिटिंग इन लाहौर, कराची एंड इस्लामाबाद, you might not be even aware about these things, right? But अगर आप रूरल एरियाज में देखो तो this is so common. A woman having an affair with a guy in a rural area might as well be killed by the family members of that woman. ठीक है ना, इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं. सो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं ये एग्जिस्ट करते हैं. और जैसे मैंने कहा कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस जो बिल था वो 2010 में अडॉप्ट किया गया. वुमेन कोटा रखा गया है पार्लियामेंट के अंदर, सीएसएस एग्जाम्स के अंदर वुमेन कोटा जो है वो रखा गया है. बट मेरी नज़र में इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि व्हाट नीड्स टू बी डन इज कि आप लोअर लेवल के ऊपर स्कूल्स के अंदर जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करो, आप उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो. और ये जो सोशल माइंडसेट है इसको चेंज करने की ज़रूरत है कि इफ यू आर if a boy is born in a family, that is more appreciated, whereas if a girl is born in a family then that sort of, you know, मे बी अर्बन एरियाज के अंदर ये काफी हद तक कम है, बट रूरल एरियाज में यस दैट स्टिल एग्जिस्ट, दैट पीपल वुड रादर, पेरेंट्स वुड रादर हैव अ बॉय देन अ गर्ल. तो ये चीजें चेंज करने की जरूरत है, ये सोशल माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है. इट इज अ गुड थिंग दैट वी हैव कोटाज इन द पार्लियामेंट एंड सीएसएस एंड पीएमएस एग्जाम्स के अंदर वी इनकरेज वुमेन पार्टिसिपेशन. बट मसला ये है कि अब आपने पार्लियामेंट के अंदर लेट्स से 10% वुमेन कोटा रखा हुआ है. अब इशू ये है कि वो जो वुमेन वहां पर आती हैं, आर do they have any qualification for that, or
does their or do their links with the political leaders sort of help them make their way to the parliament? So if they are making their way to the parliament by virtue of their links, then I feel that the purpose is not served. The purpose would have been served if women from the middle classes, if women who are not very well connected, they are able to make it to the parliament. So this is my contention with these quotas that have been set. However, these I still think, having said that, these are very positive things. So even if they, because there's a lot that needs to be done, and this is only tip of an iceberg. अगर आप ये चीजें भी कर रहे हो, then that even that is not a bad idea. These quotas and mandatory population are good steps, but more than 50% population which is based in rural areas still do not have fundamental rights, and efforts must be directed to empower them. अब ये पास्ट 15 years के कुछ क्वेश्चंस हैं. डिस्कस द पॉलिटिकल कल्चर, ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था. ऑल्सो इट्स इंपॉर्टेंस. राइट अ नोट ऑन सिविल सोसाइटी. नोट्स मैंने इसलिए लिखा है कि 2-3 दफा सवाल आया है कि राइट अ नोट ऑन सिविल सोसाइटी एंड राइट अ ब्रीफ नोट ऑन वुमेन एम्पावरमेंट. ये नॉर्मली 10 मार्क्स से क्वेश्चन आपका आता है कि लाइक फॉर एग्जांपल एक 20 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स दिए होते हैं और लिखा होता है कि राइट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग आउट ऑफ 3. तो ये इस तरह से जो है ये ज्यादा डिटेल में कवर करने की जरूरत नहीं है. But yes, you must be updated. You must have the recent examples in mind, so you will be able to answer these questions. और जो बुक्स मैं यहाँ पे लिख रहा होता हूँ उनको भी जरूर गो थ्रू किया करें. that will really help you. वैसे तो ये सारा कंटेंट उसी बुक से मैंने अक्सर डाला होता है. जैसे अगर एंड्रयू हेवुड की बुक है, जोसेफ शम्पीटर की बुक है, तो वहीं से मैंने कंटेंट जो है वो लिया होता है. बट इफ यू वांट टू रीड मोर यू कैन ऑलवेज कंसल्ट दोस बुक्स. अच्छा जी, नाउ कमिंग टू द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. दिस इज अनदर सेक्शन इन द पार्ट बी ऑफ पेपर 1. इलेक्शंस जो है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो ही नहीं सकती जब तक आपके मुल्क के अंदर इलेक्शंस ना हो. एंड्रयू हेवुड ने अपनी बुक के अंदर जो है इलेक्शंस और इलेक्टोरल सिस्टम को एक्सप्लेन किया है. इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो मेजॉरिटेरियन और प्रोपोर्शनल टाइप, दो टाइप्स के होते हैं. वो सारी टाइप्स हम अभी आगे इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे, और वो सारी जो चीजें हैं वो एंड्रयू हेवुड ने अपनी बुक पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो सारी मेंशन की, और मैंने वहीं से सारी एग्जांपल्स भी ली है. जोसेफ शम्पीटर ने अपनी बुक कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी को इस तरह इंटरप्रेट किया है कि ही इंटरप्रेट्स डेमोक्रेसी एज अ मेथड फॉर पीपल टू चूज हु कैन रूल देम और नॉट. ही आइडेंटिफाइड डेमोक्रेसी विद इलेक्शंस. Haywood considered elections as the very heart of democracy. According to Haywood, they may be defined as, elections को आप define कैसे करोगे? A device for filling an office or post through choices made by a designated body of people, the electorate. अब elections are a means for installing certain leaders into the parliament. ठीक है. अब जब आप लोग स्कूल में होते थे तो आपको याद होगा कि हम लोग अगर लेट्स से क्लास का मॉनिटर डिसाइड करना है तो हम उसके लिए इलेक्शंस करते थे. अगर हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के अंदर लेट्स से किसी ट्रिप पर जाना है और उसके लिए भी हम वोटिंग करते थे कि यार कितने लोग ये कहते हैं कि हमें इस जगह जाना चाहिए और कितने लोग ये कहते हैं कि हमें नहीं जाना चाहिए. हम कॉमन लाइफ के अंदर भी ये चीज देखते हैं कि हम बेसिकली किसी भी चीज को रिजॉल्व करने के लिए जो है वो वोटिंग के थ्रू जो है हम वो डिसीजंस के ऊपर पहुंचते हैं. तो इलेक्शन जो है वो भी इसी तरह से, दे आर द मींस टू प्रोवाइड दैट अपॉर्चुनिटी टू वोट एंड मेक ऑब्वियस योर चॉइस. फॉर एग्जांपल, अगर मैं 2018 के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने जाता हूं और मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जाता हूं. अच्छा, मैं थोड़ा सा आप लोगों को पाकिस्तान का भी बता देता हूं. तो पाकिस्तान में 342 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं. ठीक है जी, जिसको हम कहते हैं NA1, NA2, NA3 एंड अप टिल NA342. NA1 स्टार्ट होता है खैबर पख्तूनख्वा से और NA342 goes from so खैबर पख्तूनख्वा is in the north of Pakistan and then goes till the south of Pakistan जहाँ पे सिंध और बलूचिस्तान है. तो N342 तक जो है हमारी नेशनल असेंबली की सीट्स जाती हैं. अब होता यह है कि अगर मैंने 2018 में इलेक्शन देना है तो मेरा जो भी NA होगा, NA30 होगा, NA29, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो मैं वहां जाऊंगा और मैं वहां जाकर मेरे सामने कुछ पेपर्स रखे जाएंगे, उन लोगों के नाम रखे जाएंगे जो एस्पायर करते हैं कि वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बनना चाहते हैं. तो मैं उस जो भी स्पेसिफिक बंदा है जो मुझे जिसके लिए वोट करना है, मैं उसके अगेंस्ट अपना थंब इम्प्रेशन से जो है वो थंब इम्प्रेशन दूंगा और मैं अपना जो भी लीडर जिसको मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं उसको वोट कर दूंगा. एट द एंड ऑफ द डे, लेट्स से उस कॉन्स्टिट्यूंसी की 4 लाख की वोटर पॉपुलेशन है. तो 4 लाख में से लेट्स से अगर 2 लाख लोगों ने वोट दिया तो उन 2 लाख लोगों के वोट गिने जाते हैं
और फिर उनमें से जिसके भी सिंपल मेजोरिटी है, यानी कि अगर 2 लाख में से 1 लाख वोट एक बंदे को पड़ा और बाकियों को 50-50 हज़ार पड़े, तो जिसको 1 लाख वोट पड़ेगा वो फिर मेंबर बन जाएगा नेशनल असेंबली का। तो ये है वो पूरा प्रोसेस जो पाकिस्तान में वोटिंग का फॉलो किया जाता है। हमारे यहाँ पे मेजोरिटेरियन इलेक्टोरल सिस्टम फॉलो किया जाता है, बट लेट्स नॉट डिस्कस दैट नाउ, वो हम इलेक्टोरल सिस्टम में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि मैं आपको पाकिस्तान के इलेक्शंस का जो है वो बता दूं। अच्छा, साथ ही हर कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रोविंशियल असेंबली की भी 2 सीट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल जो 4 लाख की आबादी थी, मैंने जो बताया वोटर की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, वो 4 लाख ना सिर्फ उस नेशनल असेंबली के लिए वोट दे के आते हैं, बल्कि जब साथ ही साथ उनके साथ प्रोविंशियल, जिसको हम एमपीए कहते हैं, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली, उनकी भी लिस्ट शेयर की जाती है और उसमें से भी फिर आप अपना जो फेवरेट कैंडिडेट है उसको पिक करते हैं। उस फेवरेट कैंडिडेट को पिक करने के लिए डेमोक्रेसी के अंदर आपके पास ये राइट है कि आप किसी भी बेसिस पर वोट दे सकते हैं। आप उनके प्रोसेशंस में जाते हैं, आप उनके जलसों में जाते हैं और आप उनके एजेंडास को सुनते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्योंकि डेमोक्रेसी इतनी मेच्योर नहीं है, तो हमारी जो चॉइसेस होती हैं फॉर आवर लीडर्स, वो बहुत ही मायोपिक व्यूज, उसमें बहुत ज़्यादा मायोपिक व्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, we don't even know what the manifesto is, we don't even know what the party wants to do when it will come in power, या वो जो रिप्रेजेंटेटिव है, अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, नो मैटर विच पार्टी बिलोंग्स टू, क्या उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, इज ही अ क्लीन पर्सन, हाउ एजुकेटेड इज दैट पर्सन। सो ये चीज़ें हम लोग अक्सर जो है अपने जो प्रोसेस है, उसमें इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो है इन चीज़ों को अक्सर हम लोग जो है साइड लाइन कर देते हैं। लेकिन दिस शुड नॉट बी लाइक दैट, and we should select people based on their qualifications and based on their manifestos and what they want to do once they achieve that power. So ये तो हो गया जी थोड़ा सा इलेक्शंस की बात। इलेक्शंस की डेफिनेशन को जरूर याद रख लीजिए। Now moving on, elections are used to fill those public offices whose holders have policy making responsibilities, ठीक है जी, यानी कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो है हम लोगों का, मैं थोड़ा सा आपको, एक तो मैंने आपको इलेक्शंस की बात की। अब लेट्स से आपने 342 सीट्स जो है उनको फिल कर लिया नेशनल असेंबली की। अब जब आपने 342 सीट्स को फिल कर लिया, तो इसमें से जो सिंपल मेजोरिटी, जैसे 2018 में पीटीआई ने अलायंस बनाकर अपनी सिंपल मेजोरिटी पूरी की, उनके पास इनिशियली मेजोरिटी नहीं थी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब ये है कि अगर 100 लोग हैं तो 51 जो सीट्स हैं वो एक पार्टी के पास हो, तो उसकी होती है फिर सिंपल मेजोरिटी। अच्छा, अब जब सिंपल मेजोरिटी आपने जब ले ली, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप में से जो भी पार्टी का लीडर है, जो भी जिसको पार्टी नॉमिनेट करेगी, वो फिर प्राइम मिनिस्टर की वोटिंग होती है, प्राइम मिनिस्टर की वोटिंग होती है। और फिर प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट खुद सेलेक्ट करता है कि मिनिस्टर फॉर पावर ये बंदा होगा, मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स ये होगा, मिनिस्टर फाइनेंस ये होगा। तो इसेंशियली जो आप लोग, जो हम लोग को तो इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता कि हमारा जो इलेक्शंस का प्रोसेस है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारे मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इसी बेसिस पे डिसाइड होना है कि हम किस कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर लेट से मैं पीएमएलएन के कैंडिडेट को सिलेक्ट करता हूँ, तो और बहुत से लोग उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो जब वो असेंबली में जाएगा, तो अगर वो पीटीआई का नहीं होगा, तो वो प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करने में, इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने में दिस कुड बी अ प्रॉब्लम। So you understand how we select legislatures, but then those legislatures then select the executive. So जैसे हमने मॉन्टेस्क्यू को पढ़ते हुए बात की थी ना कि 3 ब्रांचेस होती हैं, लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी होता है। तो लेजिस्लेचर को हम सिलेक्ट करते हैं, फिर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट करता है। यूएस में ऐसा नहीं होता। ये हम यूएस के पॉलिटिकल सिस्टम में जब पढ़ेंगे तो हम ये चीजें हम और ज्यादा क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे कि यूएस में प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट होता है। डायरेक्टली इलेक्ट होने का मतलब ये कि लेजिस्लेचर विच, जो कि यूएस के अंदर यूएस कांग्रेस है, और यूएस कांग्रेस के अंदर जो लोअर हाउस है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, और अपर हाउस जो है वो सेनेट है। पाकिस्तान में लोअर हाउस नेशनल असेंबली है और अपर हाउस सेनेट है। सो यूएस के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सेनेटर्स का जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है और वो सिलेक्ट होके आते हैं। उसी तरह जो प्रेसिडेंट है वो, ऑल्दो वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, पाकिस्तान की तरह वहां पे ऐसा नहीं होता कि लेजिस्लेचर सिलेक्ट होगा और फिर एग्जीक्यूटिव होगा। वहां पे प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट होता है। तो अभी 24 अगस्त को आई थिंक वहां पर आप लोग सीएनएन जरूर देखना, उसमें जो है वो डेमोक्रेटिक कन्वेंशन और रिपब्लिकन कन्वेंशन हैं, जहाँ पे जो बाइडेन और कैमला, व्हाट्स हर नेम, कैमला हैरिस, और सो ये जो बाइडेन अपना डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन को एक्सेप्ट करेंगे, इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप अपनी रिपब्लिकन नॉमिनेशन को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये जो है वहां पर एग्जीक्यूटिव जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट होता है। जब नवंबर में जब वोटिंग होगी यूएस में, तो हर बंदा जो है, नो मैटर विच स्टेट आउट ऑफ द 50 स्टेट्स ऑफ यूएस वो बिलोंग करे, वो जाकर प्रेसिडेंट को डायरेक्टली वोट कर रहा होगा।
तो ये इलेक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ लेजिस्लेचर बल्कि कुछ कंट्रीज के अंदर एग्जीक्यूटिव को भी जो है वो इलेक्शंस के थ्रू सिलेक्ट किया जाता है। नो फॉर्मल रिस्ट्रिक्शंस एनी मोर। पहले ये होता था कि अगर किसी के पास एक सर्टेन प्रॉपर्टी होती थी, किसी के पास एक सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन होता था, या एक सर्टेन रेस से वो बिलोंग करते तो ही वो वोट दे सकते थे, या अगर वो मर्द हो तभी वोट दे सकते। अब वो फॉर्मल रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दी जा चुकी हैं पूरी दुनिया के अंदर। अब प्रॉपर्टी, एजुकेशन, जेंडर, रेशियल ओरिजिन, ये जो भी हो आप वोट कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप वो जो 18 ईयर्स या 21 ईयर्स कुछ कंट्रीज के अंदर अगर आप वो एज रीच कर जाओ, तो no matter if you are uneducated or if you have a master's degree, you both have equal power of voting, यानी दोनों के पास एक एक वोट अब अलाउ कर दिया गया। इनफॉर्मल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कुछ जगहों पे एग्जिस्ट करती हैं। इनफॉर्मल रिस्ट्रिक्शन, फॉर्मल नहीं है। इनफॉर्मल का मतलब ये है कि अब जैसे यूएस में इलेक्शंस हैं तो सिटीजन्स के पास ये राइट है कि इफ दे वांट टू रजिस्टर फॉर द इलेक्शंस और नॉट। बाय रजिस्ट्रेशन आई मीन दैट इफ दे रजिस्टर देन दे आर अलाउड टू वोट। सो अगर वो रजिस्टर नहीं करेंगे तो फिर वो अलाउ नहीं होंगे वोट करने के। अब वो रजिस्ट्रेशन जो है वो एक बंदे का अपना डिस्क्रेशन है कि वो अगर रजिस्टर ही नहीं करता तो फिर वो वोट देने नहीं जाएगा। बट अगर वो रजिस्टर करता है तो उसको सिर्फ एज का क्राइटेरिया, अगर वो उस एज से हिसाब से पूरा है तो फिर वो वोट दे सकता है। लेकिन कुछ कंट्रीज ने वोटिंग को कंपलसरी भी करा दिया हुआ है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, इटली। इन कंट्रीज के अंदर अगर आप एक सर्टेन एज पे पहुंच चुके हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि फिर आप वोट ना दें। इलेक्शंस के कुछ फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज रिक्रूटिंग पॉलिटिशियन। तो आप जिस पॉलिटिशियन को सिलेक्ट करोगे वो एक इलेक्शन का फंक्शन है। दे हेल्प इन मेकिंग गवर्नमेंट्स। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पीटीआई की एग्जांपल दी, आप जिस एमएनए को सिलेक्ट करोगे वो बाद में सिंपल मेजोरिटी के थ्रू गवर्नमेंट बनाएगा। प्रोवाइडिंग रिप्रेजेंटेशन, दे प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू योर लीडर्स। ठीक है, आपके जो एरिया के अंदर जो भी लीडर है उसको रिप्रेजेंटेशन मिलती है। एंड इन द सेम सेंस रिप्रेजेंटेशन आपको भी मिलती है, बिकॉज डेमोक्रेसी है क्या? अब्राहम लिंकन ने तो इसको इस तरह डिफाइन किया था ना, इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। सो अब गवर्नमेंट आप लोगों की है, लेकिन आप तो असेंबलीज में नहीं जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आपको ये रिप्रेजेंटेशन मिल रही है इलेक्शंस के थ्रू कि आप जाएं और जाकर वोट करें और अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको सिलेक्ट करें। दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ इलेक्शन। दे इन्फ्लुएंस पॉलिसी। सो नो मैटर, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वोट लेने जाना है कल को अवाम के पास, अब 2023 में दोबारा इलेक्शन है पाकिस्तान में, तो अब पीटीआई वो चीजें करेगी जो कि जब दोबारा इलेक्शंस हों तो ऐसी पॉलिसीज वो बनाए, जैसे अभी रावी रिवर का जो अर्बन सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, पावर जनरेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, जो डैम बनाना शुरू कर रहे हैं। सो ये सारे प्रोजेक्ट्स की पॉलिसीज इसलिए डिसाइड की जाती हैं कि अगली दफा जब आप वोट लेने जाओ तो आपको वोट मिले। people respect your candidate and they vote for you. If you do not do well, if your policies are bad, then elections sort of the next time you run for elections you might as well not win those elections. नंबर 5 इज एजुकेटिंग वोटर्स। तो जो भी जब इलेक्शंस में खड़ा होता है, जैसे अभी मैंने आपको डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन कन्वेंशंस की बात की, तो जब आप उन कन्वेंशन में जाते हो आपको एजुकेशन मिलती है कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या इशू है, वाटर क्राइसिस क्या है, सऊदी, यूएस, इसराइल और अभी यूएई की जो डील हुई है, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट जो हुआ है, इसके बारे में आपको दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। क्योंकि इलेक्शंस जो हैं जब भी होते हैं तो उससे पहले जो है डिफरेंट प्रोसेशंस होते हैं, डिफरेंट, जिसको हम जलसे कहते हैं उर्दू के अंदर, ये जलसों के अंदर आप जाते हो, आपको नॉलेज मिलता है। पाकिस्तान में भी जब इलेक्शन से पहले आपको याद होगा कि आपके एरियाज के अंदर पार्टी ऑफिस बनाए जाते हैं, उन पार्टी ऑफिस में वो कैंडिडेट्स आते हैं, वो डिफरेंट इश्यूज के ऊपर बात करते हैं, वो अपनी स्ट्रैटेजी बताते हैं कि हम अगर लेट से एमएनए बने तो हम कैसे चीज़ों को इन्फ्लुएंस करेंगे, कैसे हम पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेंगे इस मुल्क को। तो ये सारी चीज़ें जो है इलेक्शंस के फंक्शंस के अंदर आप लोग लिख सकते हो कि दे आल्सो एजुकेट वोटर्स and they help building legitimacy. So if someone has won from a constituency, that person is legitimate, he has a mandate. आपने अक्सर टॉक शोज में सुना होगा कि अभी पीपल्स पार्टी और पीटीआई का जो एक झगड़ा चल रहा है बिटवीन द सेंटर एंड द सिंध प्रोविंस। ठीक है, आप लोग न्यूज फॉलो कर रहे हैं, आई एम श्योर आप लोग कर रहे होंगे फॉर योर सीएसएस एग्जाम प्रेप। तो आपने देखा होगा कि वो हमेशा एक बात की जाती है कि जी पीपल्स पार्टी के पास मैंडेट है। तो मैंडेट का मतलब ये है कि ये इलेक्शंस का एक फंक्शन है कि वो लेजिटिमेसी बिल्ड कर देते हैं कि अगर आपने लेट से किसी बंदे को वोट दे दिया है तो फिर आप उसको पावर में से निकाल नहीं सकते। ठीक है जी, यू कैन नॉट थ्रो हिम आउट ऑफ द ऑफिस। So this is again one of the examples or one of the functions of elections. Moving forward, now we'll discuss the electoral systems. इलेक्टोरल सिस्टम्स के बारे में हेवुड ने उसको डिफाइन ऐसे किया था,
ये दे आर द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। तो आप किस रूल्स के तहत इलेक्शंस कराओगे, वो इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो बताते हैं कि आपके मुल्क में कौन सा इलेक्टोरल सिस्टम एग्जिस्ट करता है। Electoral systems vary across the world. Electoral systems are divided into two categories based on how they convert votes into seats. Electoral systems जो हैं दो तरह के हैं, जैसे मैंने पहले भी जिक्र कर दिया था कि एक मजॉरिटेरियन सिस्टम होता है, पाकिस्तान में मजॉरिटेरियन सिस्टम है, और फिर प्रोपोर्शनल सिस्टम है। फिर मजॉरिटेरियन की आगे फर्दर टाइप्स हैं, प्रोपोर्शनल की फिर आगे फर्दर टाइप्स हैं। मजॉरिटेरियन सिस्टम्स की मैंने आगे दो टाइप्स मैं डिस्कस करूंगा, प्रोपोर्शनल सिस्टम्स की मैं दो टाइप्स आगे भी डिस्कस करूंगा। मजॉरिटेरियन सिस्टम को समझते हैं कि वो क्या होता है। मजॉरिटेरियन सिस्टम्स आर दोस in which the larger parties typically win a higher proportion of seats than the votes they gain in the election. This increases the chance of a single party gaining a majority in parliament, for example the UK. अच्छा, इस बात का मतलब मैं अब आपको सिंपल वर्ड में समझाता हूँ कि क्या है। देखो 2013 में पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए, और 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर जो है वो उभरी। पीएमएलएन के पास बहुत ज्यादा वोट्स उनको पड़े। दूसरे नंबर पर जो पार्टी थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, ठीक है जी। और तीसरे नंबर पर जो पार्टी थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। लेकिन जब वोट्स का कंपैरिजन किया गया ना, यानी कि जब ये डिसाइड किया गया कि टोटल वोट्स कितने पड़े हैं पीटीआई को, यानी ये तो हो गया कि सीट्स कितनी जीती ना, पीएमएलएन लेट से 150 सीट जीती, पीपल्स पार्टी ने 40 सीट जीती और पीटीआई ने 30 सीट जीती, तो पीटीआई थर्ड नंबर पे थी। लेकिन जब वोट्स गिने गए, अब एक बंदे को लेट से, अब इसकी एग्जांपल इस तरह लेते हैं कि सपोज 4 लाख, मैंने अभी पहले कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 लाख लोग हैं, 4 लाख वोटर्स हैं। 3 कैंडिडेट्स खड़े हुए, पीटीआई, पीएमएलएन का एक कैंडिडेट था, पीटीआई का एक कैंडिडेट था, और पीएमएलएन पीपल्स पार्टी का एक कैंडिडेट। अब पीएमएलएन वाले कैंडिडेट को 1.5 लाख वोट पड़ा, पीटीआई के कैंडिडेट को 1,40,000 वोट पड़ा, टोटल हो गए 2,90,000। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को 1,10,000 वोट पड़े। अब 4 लाख वोट इस तरह से डिवाइड हो गए, ठीक है जी। अब आप ये देखो कि 1.5 लाख पीएमएलएन को पड़ गया तो वो जीत गया, क्योंकि उसके पास मेजोरिटी आ गई, ठीक है जी। मेजोरिटी वोट्स जो है जिसके पास सबसे ज्यादा थे वो जीत गया। पीटीआई को ऑल दो 1,40,000 वोट पड़ा, बट वो इलेक्ट नहीं हुआ बंदा। सो सीट नहीं उसको मिली, बट वोट बहुत मिले, ठीक है जी। ये सिस्टम पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करता है कि वोट्स बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाते हैं। यही चीज यूके के अंदर भी है कि एक बंदे ने कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होना है। जब एक बंदे ने इलेक्ट होना है तो चाहे थोड़े से वोट्स का मार्जिन हो, बट वो बंदा इलेक्ट होकर आ जाता है। अगर इसी तरह आपने 2018 के अच्छा, अब ये एग्जांपल मैंने इसलिए दी कि 2013 में क्या हुआ था कि पीटीआई ऑल दो नंबर थर्ड पे थी, उनकी सीट्स और पीएमएल की सीट्स में बहुत ज्यादा फर्क था, ऑलमोस्ट कोई 80 टू 90 सीट्स का फर्क था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन उनके जब वोट्स कंपेयर किए गए तो पीटीआई सेकंड नंबर पे थी और बहुत क्लोज थी पीएमएलएन के। तो इससे ये साबित हुआ कि लोगों ने जाकर वोट तो डाला, लेकिन वन वे और दी अदर जो मैक्सिमम सीट्स मिली वो पीएमएलएन को मिली, बट पीटीआई वाज हैड अ वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट, बट इन टर्म्स ऑफ सीट्स वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। तो ये होता है मेजॉरिटेरियन सिस्टम के अंदर कि लार्जर पार्टीज टिपिकली विन अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स देन द वोट्स दे गेन इन द इलेक्शन। तो मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि आपको 1.5 लाख वोट मिला है तो आपको सीट मिल गई, दूसरे बंदे को 1,40,000 वोट मिला, सिर्फ 10,000 का फर्क था, लेकिन उसको सीट नहीं मिली। सो यही बात होती है मेजॉरिटेरियन के अंदर कि लार्जर पार्टीज टिपिकली विन अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स देन द वोट्स दे गेन इन द इलेक्शंस, and this increases the chance of a single party gaining a majority in parliament. For example, in the UK अभी जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी जिसके जो है बोरिस जॉनसन लीडर हैं, तो अभी उनकी जो पार्टी है वो मेजॉरिटेरियन सिस्टम के थ्रू विन करके आई है। प्रोपोर्शनल सिस्टम्स कौन से होते हैं? विच गारंटी एन इक्वल और एट लीस्ट मोर इक्वल रिलेशनशिप बिटवीन द सीट्स वन बाय अ पार्टी एंड द वोट्स गेन्ड इन द इलेक्शन। फॉर एग्जांपल जापान। तो ये उसके ऑपोजिट हो जाता है कि जहां पर जो आपको सीट्स मिलेंगी वो आपके वोट से प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना प्रोपोर्शनल, सीट्स इज प्रोपोर्शनल टू द वोट्स। मेजॉरिटेरियन में ऐसा नहीं होता, मेजॉरिटेरियन में आपकी सीट्स और वोट्स के बीच में कोई प्रोपोर्शन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक हो गया जी। मेजॉरिटेरियन के फिर जो दो टाइप्स हैं, एक सिंपल प्लूरैलिटी सिस्टम है और ये पाकिस्तान में है, सेकंड बैलेट सिस्टम है। प्रोपोर्शनल सिस्टम की दो टाइप्स हैं, लिमिटेड वोट सिस्टम और पार्टी लिस्ट सिस्टम। अब इनको वन बाय वन पढ़ते हैं कि ये क्या है। सिंपल प्लूरैलिटी सिस्टम जो कि मेजॉरिटेरियन सिस्टम की एक टाइप है,
This is used in the UK, the USA, Canada and Pakistan. There are single member constituencies, यानी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर से एक बंदा जो है वो सिलेक्ट होकर आएगा। जैसे मैंने आपको 4 लाख वोटर की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बताया कि अगर 4 लाख बंदा वोटर है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यानी उनकी 18 से ज्यादा एज है, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में से सिर्फ एक बंदा सेलेक्ट होगा। ठीक है जी। वोट्स सिलेक्ट अ सिंगल कैंडिडेट, विनिंग कैंडिडेट्स ओनली नीड टू अचीव प्लूरैलिटी ऑफ वोट्स, यानी उनको सिर्फ बाकियों से जो फर्स्ट नंबर पे आना है वोट्स लेने में, यानी कि एक नंबर से भी वो पास हो सकते हैं। जिसे हम कहते हैं ना सीएसएस में, लेट से आप 39 में से 40 लेने आपने तो आप पास कर देंगे, 39 पे आप फेल कर जाएंगे। उसी तरह जो सिंपल प्लूरैलिटी सिस्टम है उसमें ये होता है कि जी आपने दूसरे आने वाले कैंडिडेट से एक वोट ज्यादा लेना है तो आप जीत जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि इसमें वोट्स बहुत ज्यादा जो है वो वेस्ट हो जाते हैं। एडवांटेज क्या है जी के advantage is that strong governments are formed, a single party usually has majority control of the assembly। ठीक है जी। तो इसलिए हम पाकिस्तान में जब ये कहते हैं ना कि या तो पीटीआई पावर में आ सकती है या पीएमएलएन आ सकती है, पीपल्स पार्टी अब क्योंकि सिंध की पार्टी होके रह गई है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिंपल प्लूरैलिटी सिस्टम एग्जिस्ट करता है, एक ही सिंगल पार्टी जो है वो उसके पास मेजोरिटी कंट्रोल होगा असेंबली का। डिसएडवांटेज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि बहुत से वोट्स जो है वो वेस्ट हो जाते हैं इस प्रोसेस के अंदर। सेकंड बैलेट सिस्टम जो है वो फ्रांस में एग्जिस्ट करता है, ये भी सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। आपको पहले बैलेट में जीतने के लिए अ कैंडिडेट नीड्स एन ओवरऑल मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स कास्ट। यहाँ पे ना 2 दफा वोटिंग होती है। ठीक है। पहला बैलेट जीतने के लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, जैसे कि हमने लास्ट टाइम अभी सिंपल सिंगल पार्टी सिस्टम में पढ़ा था, सिंपल प्लूरैलिटी सिस्टम में पढ़ा था। If no candidate gains a first ballot majority, a second run-off ballot is held between the leading 2 candidates। अब देखो, अगर आपने पहला बैलेट जीतना है तो आपको एक ओवरऑल मेजॉरिटी चाहिए ऑफ द वोट्स कास्ट। अब अगर किसी एक कैंडिडेट के पास मेजॉरिटी नहीं आती तो एक रन ऑफ बैलेट जो है वो दोबारा से होगा जो लीडिंग 2 कैंडिडेट्स है उनके बीच में। Advantage is that stable government results, and disadvantage is that a second ballot may strain the electorate's patience and interest in politics। अब देखो, पहले जो हमने डिस्कस किया सिंपल प्लूरैलिटी सिस्टम, उसमें हमने क्या कहा था कि अगर आपका एक भी वोट ज्यादा है तो आप जो है वो इलेक्ट हो सकते हो। ठीक है। और हमारे पाकिस्तान में मैंने आपको 2013 की एग्जांपल भी दी कि पीटीआई के वोट्स बहुत ज्यादा पड़े लेकिन वो थर्ड आए। ठीक है। उनके सारे वोट्स जो थे वो वेस्ट हो गए थे, और जो वोट्स हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। फ्रांस में उन्होंने इस चीज को कैटर करने के लिए ये किया कि उन्होंने 2 बैलेट्स इंट्रोड्यूस करा दिए। पहले बैलेट के अंदर आपको एक ओवरऑल मेजॉरिटी चाहिए ऑफ ऑल द वोट्स कास्ट। ठीक है जी। अब अगर किसी को भी ओवरऑल मेजॉरिटी नहीं मिलती, यानी कि लेट्स से वो 51% ऑफ 100 वोट्स अगर आपको नहीं मिलते, तो फिर आपकी रैंकिंग होगी ना कि यार इस बंदे को, ये बंदा फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, फिर उन 2 बंदों के बीच में जो लीडिंग 2 के फिर एक और बैलेट होता है। तो उससे ये होता है कि जो वोट्स हैं वो वेस्ट नहीं होते हैं, और जो 2 लीडिंग कैंडिडेट्स हैं उनको जो है वो आप चांस मिल जाता है कि वो दोबारा से कंटेस्ट करें। तो यानी कि 2 में से फिर आपको दोबारा चॉइस दी जाती है कि अब आप इसमें से एक बंदा पिक कर लें। ये अच्छा, ये हमेशा दो बैलेट्स नहीं होते। पहले बैलेट में अगर एक बंदे को ओवरऑल मेजोरिटी मिल जाती है तो फिर सेकंड बैलेट नहीं होता, बट अगर दोनों ओवरऑल मेजोरिटी ना हो तो फिर दोबारा से वोटिंग होती है। अच्छा, अब प्रोपोर्शनल की बात करें। प्रोपोर्शनल में आपको मैंने बताया था कि जो आपकी सीट्स होंगी वो आपके वोट्स के प्रोपोर्शनल होती हैं। इसमें जो एग्जांपल है वो लिमिटेड वोट सिस्टम की, और ये जापान में है। इधर यहाँ पर ना मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी होती है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी से 3 से 5 मेंबर्स इलेक्ट होके आएंगे। पाकिस्तान में मैंने आपको बताया कि सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। इवन फ्रांस में सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी थी, बट यहाँ पर मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज है, यानी हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक बंदे ने नहीं, 3 से 5 बंदे आ सकते हैं। ठीक है जी। इलेक्टर्स कास्ट ओनली 1 वोट, वो एक ही वोट दे सकते हैं। वो चाहे कैंडिडेट ए को दे दें, कैंडिडेट बी को दे दें, या कैंडिडेट सी, डी और ई, किसी भी कैंडिडेट को दे सकते हैं। और सिंपल प्लूरैलिटी बेसिस के ऊपर, जो हमने पाकिस्तान में जिस तरह का सिस्टम है उसी बेसिस पे होता है कि जो टॉप पे आएगा वो भी इलेक्ट हो जाएगा, जो नंबर 2 पे आएगा वो भी इलेक्ट हो जाएगा, नंबर 3 अप टिल नंबर 5 जो है वो सारे फिर असेंबली में भेज दिए जाएंगे एज इलेक्टेड मेंबर्स। एडवांटेज इज दैट इट इज फेयरर टू स्मॉलर पार्टीज, यानी कि छोटी पार्टीज का भी बंदा जो है वो इलेक्ट होके आ जाता है उसके अंदर। डिसएडवांटेज ये है कि इलेक्टेड में इजीली एस्केप देयर कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पांसिबिलिटी। अब आप देखो कि अगर मैंने लेट से जो 4 लाख वोटर की एग्जांपल दी,
अब उसमें से 1.5 लाख बंदे ने एक सर्टेन कैंडिडेट को सिलेक्ट करके असेंबली भिजवाया। 5 साल बाद वो उस बंदे को अकाउंटेबल ठहरा सकता है कि भाई आपने कहा था कि आप ये नालियां पक्की करवाएंगे, आप यहाँ स्कूल बनाएंगे, आप हॉस्पिटल बनाएंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं बना। जब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 3 से 5 मेंबर इलेक्ट होके जाएंगे तो मसला ये है कि आप ये डिटरमिन नहीं कर सकते कि किस बंदे ने काम किया और किसने काम नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि द इलेक्टेड में इजीली स्केप देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, प्रोपोर्शनल की एक और एग्जांपल है पार्टी लिस्ट सिस्टम। पार्टी लिस्ट सिस्टम जो है वो इजराइल, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड के अंदर एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर भी लार्ज मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। पार्टीज अपने कैंडिडेट्स की एक लिस्ट बनाती है और उनको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में रैंक कर देती है। इलेक्टोरल पार्टीज के लिए वोट करते हैं, कैंडिडेट्स के लिए वोट नहीं करते हैं। Parties are allocated seats in direct proportion to the votes they gain in the election. They fill the seats from their party list. Advantage is that this is potentially pure system of proportional representation and is therefore fairest of all the systems. Disadvantage is that many small parties exist and that can lead to a government forming which is not stable. तो ये बात अभी तक हो गई कि एडवांटेजेस इसके क्या हैं और डिसएडवांटेजेस के क्या हैं। सो ये पार्टी लिस्ट सिस्टम एक दफा दोबारा से आपको ब्रीफली बता देता हूँ। पार्टी लिस्ट सिस्टम के अंदर हर पार्टी जो है वो अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो रखती है वोटर के सामने, और वोटर जो है वो पार्टी को वोट करता है, वो कैंडिडेट को वोट नहीं करता। टोटल वोट्स काउंट किए जाते हैं कि उस पार्टी को कितने वोट मिले, यानी पार्टी ए को कितने मिले, पार्टी बी को कितने मिले। अब जितने वोट्स हैं उसकी प्रोपोर्शन, यानी लेट्स से अगर एक पार्टी को 60% वोट्स मिले हैं और एक पार्टी को 40% वोट्स मिले हैं, तो 60% का मतलब ये है कि अगर 5 मेंबर्स उस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट होने थे, जैसे ये मल्टी मेंबर थी, मैंने आपको पहले बताया था, तो 60% यानी कि 3 मेंबर्स पार्टी ए से चले गए और 2 मेंबर्स पार्टी बी से इलेक्ट होकर असेंबली में चले जाएंगे। तो ये हो गया पार्टी लिस्ट सिस्टम। अब हम लोग मूव कर रहे हैं, अभी हमने क्या डिस्कस किया पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर, इलेक्शंस, इलेक्टोरल सिस्टम, और अब हम डिस्कस करने लगे पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन, एंड्रयू हेवुड ने अपनी बुक पॉलिटिक्स में पब्लिक ओपिनियन की बात की, और साथ ही उन्होंने बात की थी कि हाउ मीडिया इन्फ्लुएंसेस इन शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन। Public opinion is considered as an essential element for successful working of a democracy. Public opinion is not unanimous. However, there is a general agreement on the issue. अब इसको थोड़ी देर के लिए आप लोग स्लाइड्स को मत देखें, अब मेरी बात सुने। पब्लिक ओपिनियन क्या होता है? 20, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह से दूंगा कि 2016, बल्कि लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान। सो 2018 में पीटीआई जो थी पार्टी में 2016 के अंदर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा जी, सो पब्लिक ओपिनियन की बात कर रहे थे। अच्छा, अब देखो 2018 में जब इलेक्शंस हुए तो पीटीआई ने 2-3 बहुत बड़ी बातें की, और वो 2-3 बातें वो थी जो कि पीएमएलएन की पार्टी से रिलेटेड थी या पीपल्स पार्टी की पार्टी से रिलेटेड थी, और उन्होंने उसको अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो का पार्ट भी बनाया। उन्होंने एक बात ये की कि हम इस मुल्क से करप्शन खत्म कर देंगे, 90 डेज के अंदर पाकिस्तान से जो है वो करप्शन खत्म कर दी जाएगी, 90 डेज के अंदर अंदर। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हम जो है वो 10 मिलियन नौकरियां और कोई 5 मिलियन जो है वो हम लोग अपना घर बनाएंगे। अब ये बहुत बड़ी बातें थी, ये बड़ी बातें इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये बड़ी अनडूएबल और बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सी बातें थी, बट उन्होंने ये बातें की। उसका रीजन क्या होगा आपके ख्याल में? उसका रीजन ये है कि पब्लिक ओपिनियन की वजह से उन्होंने ये बातें की। पब्लिक ओपिनियन का मतलब ये है कि उस टाइम पैनामा का केस हुआ था, नवाज शरीफ जो थे उनको सजा मिल चुकी थी, तो पब्लिक ओपिनियन ये था कि हमारे मुल्क की तरक्की का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि हम तरक्की इसलिए नहीं कर सक रहे क्योंकि हमारे मुल्क में करप्शन बहुत ज्यादा है। तो पीटीआई ने इसको अपना नंबर 1 एजेंडा बना दिया और उन्होंने ये बात की कि हम इस मुल्क से जो है ना वो करप्शन खत्म कर देंगे। तो क्या उन्होंने किया कि पब्लिक ओपिनियन को फॉलो किया, पब्लिक ओपिनियन को ट्रैक किया, और पब्लिक जब ये एग्री कर रही थी कि करप्शन हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है तो उन्होंने उसको अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो बना दिया। इसी तरह पब्लिक में एक और ओपिनियन ये था कि हमारे ये नौकरियां नहीं है, हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं दे गेट देयर डिग्रीज बट दे डू नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट्स। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर श्रिंक कर रहा है, इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, तो फिर उन्होंने इसको भी अपना मैनिफेस्टो का पार्ट बनाया। नाउ द आइडिया इज दैट
public opinion is followed, it is respected, and the political parties, uh, the legislature, the executive takes that into account. So public opinion की importance बहुत ज़्यादा है. Now coming back to the slide, public opinion is not unanimous. However, there is general agreement on the issue. It may change with the circumstances. It is related to not just politics, but also it is related to not just politics but also economic, cultural or social matters. So public opinion could be on anything. Let's say अगर मैं economics की एक example आपके सामने लेता हूँ. Economics में for example अगर public ये सोचती है कि हमारे मुल्क में imports के ऊपर बहुत ज़्यादा duties लगनी चाहिए और हमारे मुल्क के अंदर जो है वो domestic producers को support करना चाहिए, उनको free electricity provide करनी चाहिए. तो ये एक पब्लिक ओपिनियन होगा, सारों को इससे एग्री करना जरूरी नहीं है. इट शुड नॉट बी यूनानिमस, बट जनरल एग्रीमेंट ये होगा कि हमारे मुल्क में डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्री प्रोवाइड की जानी चाहिए और इंपोर्ट ड्यूटीज खत्म होनी चाहिए ताकि हमारे मुल्क में लोकल प्रोडक्शन ज्यादा हो. ठीक है, इसी तरह कल्चरल सोशल मैटर्स के ऊपर भी कोई ओपिनियन हो सकता है. इट इज जनरली लॉजिकल, इट इज सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन एंड चेंज, इट इंश्योर्स डेमोक्रेटिक कम्युनिकेशन. इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो हेवुड ने जो कहा था कि मीडिया का इन्फ्लुएंस इन शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन. यहाँ पे मैं आपको यूएस की एग्जांपल देखता हूँ. 2016 में डेमोक्रेट कैंडिडेट जो थी, वो डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन जो थी वो हिलरी क्लिंटन थी और रिपब्लिकन नॉमिनेशन जो थे वो डोनाल्ड ट्रंप थे. अच्छा, यहाँ पे हो ये रहा था कि मीडिया को सब यूज कर रहे थे फॉर शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन एज वेल, इन द सेंस अब यहाँ पे ये हुआ कि एंटी इमिग्रेंट्स के पॉलिसीज जो थी, ट्रम्प ने जैसे कहा कि मैं एक वॉल खड़ी कर दूंगा बिटवीन यूएस एंड मैक्सिको एंड आई डू नॉट वांट पीपल कमिंग फ्रॉम मैक्सिको टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. ये सारे स्लोगन्स भी इंट्रोड्यूस कराए गए. ये इसलिए, और ये टीवी पे बार बार चलाए गए, फेसबुक ट्विटर पे बार बार ये चीजें चलाई गई ताकि लोगों का ओपिनियन उस तरह से शेप होना शुरू हो जाए. तो उन्होंने अपना जो सारी पॉलिसीज थी वो उसके अराउंड रिवॉल्व करवाई कि पब्लिक ओपिनियन को फेवरेबल किया जाए टुवर्ड्स देयर ओन सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल एम्बिशंस. तो ये जो है ना पॉलिटिकल ओपिनियन, जो पब्लिक ओपिनियन है उसमें मीडिया जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. पब्लिक ओपिनियन कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के थ्रू. पॉलिटिकल सोशलाइजेशन मैंने कल आपको बताया था कि इट इज द मेथड ऑन हाउ यू एक्वायर पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स. ठीक है, अब अगर जो भी आपके स्कूल्स में आप फैमिली डिनर टेबल के ऊपर विद योर फ्रेंड्स जो आप डिस्कशंस करते हो, जो आप क्लासरूम में डिस्कशन करते हो, वो सारी चीजें आपकी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहलाती हैं, विच मीन्स दे डेवलप योर एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स. और फिर वो एटीट्यूड एंड बिलीव्स जो है वो आपके पब्लिक ओपिनियन को जो है फॉर्मुलेट करता है. मैस मीडिया के ऊपर जैसे मैंने कहा कि ट्रम्प की कैंपेन थी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस तरह की जो कैंपेन्स होती हैं, जो स्लोगन्स होते हैं, ये भी आपके पब्लिक ओपिनियन को जो है वो फॉर्म कर रहे होते हैं. सिनेमा, जो मूवीज आप देखते हो, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले कुछ मूवीज आई थी जैसे मिस्टर स्मिथ गोज टू वॉशिंगटन, इट्स अ वंडरफुल लाइफ. ये मूवीज ऑल्दो सिनेमा को हम नॉर्मली तो ये कंसिडर करते हैं ना, दिस इज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, बट इन मूवीज के अंदर हमने ये देखा कि साइलेंटली सब्लिमिनल मैसेजिंग दी जाती थी. और वो सब्लिमिनल मैसेजिंग ये थी कि पीपल शुड सॉर्ट ऑफ they get this message about war के नाजी जर्मनी क्या कर रहे हैं, यूएस क्या कर रहा है, जापान क्या कर रहा है. सो ये सारा जो सिनेमा जो है उसको भी यूज किया जाता है फॉर फॉर्मिंग पब्लिक ओपिनियन. पब्लिक मीटिंग्स जो है, जैसे जो जलसे वगैरह होते हैं, वहां पे भी पब्लिक ओपिनियन फॉर्म किया जाता है. पॉलिटिकल पार्टीज की जो एक्टिविटीज होती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि इलेक्शन से पहले जो पार्टी ऑफिसेज होते हैं वहां पे मीटिंग्स होती हैं, प्रोसेशंस होते हैं, वो भी आपका पब्लिक ओपिनियन जो है वो फॉर्मुलेट करता है. ओपिनियन पोल्स जो है वो भी आपका ओपिनियन जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं, जो पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं. ओपिनियन पोल्स क्या होते हैं जी, कि जहां पर आवाम से ये ओपिनियंस लिए जाते हैं. जब अभी जैसे इस टाइम अमेरिका में क्योंकि नवंबर में इलेक्शंस हैं, तो अभी डिफरेंट ओपिनियन पोल्स किए जा रहे हैं. ओपिनियन पोल्स में ये हो रहा है कि लोगों को ये चॉइस दी जाती है कि जी आप इस इलेक्शन में ट्रंप को वोट करेंगे या जो बाइडेन को वोट करेंगे. तो वहां पर अभी जब तो जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें जो बाइडेन को ज्यादा लोग जो है वो वोट करने की बात कर रहे हैं. तो ओपिनियन पोल से भी जो है आपका ओपिनियन जो है वो फॉर्म हो सकता है. आप उस जब ओपिनियन पोल से क्वेश्चंस को पढ़ते हो, यू 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 रिसर्च अबाउट देम,
you develop a certain opinion about them. एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जो आपको स्टडीज कराई जाती हैं, जो आप लोग सोशियोलॉजी पढ़ते हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हो, जर्नलिज्म पढ़ते हो, हर सब्जेक्ट के बारे में आपका एक ओपिनियन फॉर्मुलेट होना शुरू हो जाता है अबाउट योर सोसाइटी, अबाउट योर कंट्री. तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि पब्लिक ओपिनियन को फॉर्मुलेट करने की. Hindrances क्या आती हैं इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन. नंबर वन इज योर इनडिफरेंट एटीट्यूड. इफ द, और ये कल हमने बड़ा, मुझसे एक दो लोगों ने क्वेश्चन भी किया, एक दो स्टूडेंट्स ने, अबाउट द कल्चर, पार्टिसिपेंट, सब्जेक्ट और पेरोकियल कल्चर. तो जो आपके मुल्क में कल्चर, अगर लेट से पेरोकियल कल्चर एग्जिस्ट करता है या सब्जेक्ट कल्चर एग्जिस्ट करता है, पार्टिसिपेंट कल्चर नहीं एग्जिस्ट करता, और यानी कि आपके अंदर वो एटीट्यूड ही नहीं है कि आप इश्यूज के बारे में कोई राय रखो या उनके बारे में समझने की कोशिश करो, तो तब आपका फिर ओपिनियन नहीं होता किसी चीज के ऊपर. अगर किसी लेमैन से आज जाके पूछूं और मैं किसी को कहूं कि यार ये आप पानी वेस्ट कर रहे हो, एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन दिस एग्जांपल वेयर पीपल वेस्ट ह्यूज बकेट्स ऑफ वाटर. वो गाड़ी धो रहे होंगे और पानी वेस्ट कर रहे होंगे. अगर आप उन्हें जाके कहोगे ना कि यार ये आप पानी क्यों वेस्ट कर रहे हो, तो वो आपको कहेंगे यार आपको क्या लगे, दिस इज माई डिस्क्रेशन, माई विम, I can do whatever I want to do, because they don't know that there is a water crisis going on and they don't know that there is a climate change happening across the globe. लेकिन लोग जो हैं वो करेंगे because their attitude is indifferent. They do not have a public opinion about climate change, about water crisis, so they will do whatever they want to do. Similarly, illiteracy. हमारे मुल्क के अंदर literacy rate is just 57%. लेटेस्ट नंबर देख लेना, आई थिंक 58 और 57% है जिस मुल्क के अंदर लिटरेसी. और ये भी वो लिटरेसी रेट है जिसमें पीपल कैन जस्ट राइट अ कपल ऑफ वर्ड्स, या दो तीन वर्ड्स को अगर वो रीड कर लेते हैं तो उस बेसिस पे लिटरेसी है. अगर आप लिटरेसी रेट को इस तरह से करो कि एक बंदा इफ ही कैन राइट एन एसे ऑफ 2000 वर्ड्स, तो शायद आपके मुल्क में लिटरेसी रेट 2% या 3% हो. तो यू अंडरस्टैंड हाउ लिटरेसी, जो एक ऑलरेडी एक बहुत रिलैक्स क्राइटेरिया, उसके मुताबिक लिटरेसी इतनी कम है, तो इसलिए आपका कोई पब्लिक ओपिनियन नहीं बनता. आपका पर्सनल ओपिनियन नहीं होता, तो फिर पब्लिक ओपिनियन भी नहीं बनता. तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि जहाँ पे, और ये मैंने कल आपसे कहा कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी इसलिए भी थ्राइव नहीं करती है बिकॉज हमारे यहाँ पे एक तो डेमोक्रेटिक एट्रीब्यूट्स नहीं है, फिर लोगों के अंदर एजुकेशन नहीं है. तो जब एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो फिर पता ही नहीं है कि मसले क्या और मसलों को हल कैसे कर सकते हैं. तो इसलिए हमारे मुल्क में जो है फिर वो इलेक्शन, जो हमारे मुल्क में एमएनए बन के आते हैं, वो बिरयानी की प्लेट्स देकर और लाइक किसी के जनाजे पर वो चले जाएं तो लोग कहते हैं कि ही इज अ वेरी गुड पर्सन. सो रियल इश्यूज के ऊपर पब्लिक ओपिनियन नहीं है, और जब पब्लिक ओपिनियन नहीं है तो फिर वोटिंग भी उस हिसाब से होती है और सही अच्छे लीडर्स हमें नहीं मिलते. Poverty is also a hindrance in formulation of public opinion, information of public opinion. अगर मुल्क में गुर्बत बहुत ज्यादा होगी, पब्लिक ओपिनियन नहीं होगा. लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, अगर प्रेस को आज़ादी नहीं होगी कि वो अपना हक राह दही, जिसे हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, जो हम बात करते हैं, तो अगर फ्री स्पीच अलाउड नहीं होगी, मीडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, सेंसरशिप बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव होगा, तो फिर पब्लिक ओपिनियन नहीं फॉर्मुलेट होगा. इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन की अगर बात करें तो इट इन्फ्लुएंसेस एग्जीक्यूटिव एक्शंस. एग्जीक्यूटिव एक्शन को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है. अभी मैंने थोड़ी देर पहले शायद एक हिंदू टेंपल की बात की कि इस्लामाबाद में ये डिसीजन हुआ कि जी हम हिंदू टेंपल बनाएंगे, लेकिन आज आप देखो तो वो न्यूज में नहीं है. और उसका रीजन ये है कि मैं एट दैट टाइम आई वाज यूजिंग फेसबुक, और फेसबुक पे आई यूज्ड टू सी दिस वीडियोस जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों ने वीडियोस बनाई हुई थी कि हमारे पैसों से जो है वो हिंदू टेंपल क्यों बनाया जा रहा है. तो आप देखोगे फिर अब उसके ऊपर कोई पेशरफ्त भी नहीं हुई है. नाउ पीपल हैव गॉन, now the government has gone silent on it because there was a huge backlash from the public. क्योंकि हमारे यहाँ पे सोसाइटी बहुत कंजर्वेटिव है, तो इसलिए जब लोगों ने ये बात की कि जी ये पब्लिक ओपिनियन, मतलब ये शेप हुआ पब्लिक ओपिनियन कि हमारे मुल्क में हिंदू टेंपल नहीं बनाए जाएंगे, तो फिर हिंदू टेंपल की जो डिस्कशन थी वो बिल्कुल बैक बर्नर पर चली गई और वो डिस्कशन पार्क कर दी गई. तो आप देखोगे कैसे पब्लिक ओपिनियन की कितनी इंपॉर्टेंस है कि वो इन्फ्लुएंसेस एग्जीक्यूटिव एक्शंस. नंबर टू, इट एड्स इन लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन वो की जाएगी, बिल्स वो पास किए जाएंगे जिस पर पब्लिक ओपिनियन फेवरेबल होगा. एंड ऑल्सो इट एक्ट्स एज अ वॉच डॉग. वॉच डॉग का मतलब ये, इट कीप्स एन आई ऑन व्हाट इज हैपनिंग, what is the legislature doing, what is the executive doing, it sort of influences them. तो ये बात हो गई जी पब्लिक ओपिनियन की. नाउ मूविंग ऑन टू पॉलिटिकल पार्टीज. अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज जो है, they have a very huge role in democracy, and Andrew Haywood has talked about their roles and how they sort of mobilize the masses and how they sort of articulate their interests.
एडमंड बर्ग की ने इसको डिफाइन किया था पॉलिटिकल पार्टी को, और उन्होंने डिफाइन इस तरह से किया था कि बॉडी ऑफ men यूनाइटेड on a particular cause on which they all agree. So political parties would naturally have some cause for which they fight for which they are vocal about. और ये जो definition है ये एडमंड बर्ग ने दी थी about the political parties. कुछ मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज की। यूके के अंदर विग्स और टोरीज एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, ये विग्स और टोरीज जो है ये पुराने नाम हैं, ये 1700s 1800s के अंदर थे। अब जो इनके मॉडर्न नाम है, टोरीज को आज कंजर्वेटिव पार्टी जो है उसको टोरीज आज भी कहा जाता है। जो कंजर्वेटिव पार्टी है जिसके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थी थेरेसा मे, उससे पहले डेविड कैमरून, और अभी जो है बोरिस जॉनसन। और विग्स जो है वो एक लिबरल पार्टी होती थी पहले, अब विग्स का नाम यूज नहीं किया जाता, अब वहां पर जो है वो लेबर पार्टी जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो यूके के अंदर दो मेजर जो पार्टीज हैं वो है लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी। यूएस के अंदर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दो पार्टीज वहां पे जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। इंडिया के अंदर ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है ये दो मेजर पार्टीज हैं। पाकिस्तान में तीन मेजर पार्टीज हैं, पहले दो थी बट विद द राइज ऑफ पीटीआई पाकिस्तान में अब तीन बड़ी पार्टीज हैं, पीएमएलएन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड पीटीआई। थोड़े से मैं आपको पाकिस्तान की और भी पॉलिटिकल पार्टीज के नाम बता देता हूँ सो दैट देयर माइट बी अ क्वेश्चन अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो वहां पे अवामी नेशनल पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, बट उसको एक रीजनल पार्टी कहा जाता है क्योंकि अवामी नेशनल पार्टी अगर आप देखो तो थोड़े बहुत इनके कैंडिडेट्स कराची में खड़े होते हैं, बट पंजाब के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर इनका कोई रोल नहीं है। तो इसलिए अवामी नेशनल पार्टी प्रिडोमिनेटली इज अ पख्तून पार्टी एंड दिस इज अ पार्टी बेस्ड इन केपी और खैबर पख्तूनख्वा। पीटीआई ने अपने आप को 2013 के इलेक्शंस में, 2013 में भी इन्होंने केपी में गवर्नमेंट बनाई और अब 2018 में भी बनाई। 2018 में तो इन्होंने कंप्लीट वॉक ओवर किया बिकॉज तकरीबन हर सीट जो थी वो पीटीआई ने जीती एक्सेप्ट वन और टू सीट्स। आउट ऑफ द टोटल 40 सीट्स इन ऑफ नेशनल असेंबली इन केपी, I think PTI won like 37 or 38 seats, या 39 seats maybe. So PTI अब बहुत बड़ी पार्टी जो है वो केपी की बन गई है। और एएनपी को हम रीजनल पार्टी कहते हैं बट पीटीआई को हम नेशनल पार्टी कहते हैं बिकॉज पीटीआई इज नॉट जस्ट इन केपी, इट इज आल्सो इन पंजाब, सिंध एंड इवन इन सम एरियाज ऑफ बलूचिस्तान। तो पीटीआई जो है वो एक नेशनल पार्टी है बट एएनपी एक रीजनल पार्टी है। अच्छा, मूविंग ऑन, पंजाब के अंदर हम देखें तो पंजाब में हमें सबसे बड़ी पार्टी जो है वो पीएमएलएन नजर आती है। पीएमएलएन के बाद पीटीआई, और पीटीआई के बाद जो है वो पीएमएलक्यू हमें नजर आती है। पीटीआई और पीएमएलक्यू ने कोalition के थ्रू गवर्नमेंट बनाई थी। सीट्स अगर देखें तो वो पीएमएलएन की ज्यादा थी पंजाब के अंदर 2018 में। सो पंजाब, अब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि 50% पॉपुलेशन जो है वो पंजाब में है। तो जो हमारे यहाँ पे नेशनल पार्टी, अब पीएमएलएन इज नॉट अ नेशनल पार्टी, पीएमएलएन की सिंध में कोई प्रेजेंस नहीं है, केपी में थोड़ी बहुत प्रेजेंस है और बलूचिस्तान में थोड़ी बहुत प्रेजेंस है, बट प्रिडोमिनेटली इट्स अ पंजाब पार्टी। बट वो गवर्नमेंट में आ जाते हैं बिकॉज पंजाब में अगर वो 50% पॉपुलेशन है तो उनको सिंपल मेजोरिटी चाहिए असेंबली में आने के लिए। थोड़ी बहुत सीट्स आप सिंध से जीत लेते हो, थोड़ी बहुत आप केपी से जीत लेते हो, पंजाब में आप अगर क्लीन स्वीप कर देते हो तो आप अपनी गवर्नमेंट बना लेते हो सेंटर के अंदर, आप पूरे पाकिस्तान पे हुकूमत करते हो। तो पंजाब की जो मेजर पार्टी है वो पीएमएलएन है। पीटीआई हैज इमर्ज्ड एज अ मेजर पार्टी इन पंजाब। पीपल्स पार्टी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और इसीलिए इन इन तीनों पार्टीज को हम कहते होते थे कि नेशनल पार्टीज हैं। बट इस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी, 2018 में उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी, तो पीपल्स पार्टी कन्फाइन होकर रह गई है सिंध के अंदर। सिंध में एक और पार्टी है एमक्यूएम, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो कि सिर्फ और सिर्फ कराची हैदराबाद के अंदर जो है वो प्रिडोमिनेटली बेस करती है। इसी तरह पाक सरजमीन पार्टी जो मुस्तफ़ा कमाल ने बनाई, पीएसपी जिसे कहते हैं, वो भी सिंध के अंदर है, अगेन प्रिडोमिनेटली कराची एंड हैदराबाद। इसी तरह से वी सी पंजाब के अंदर जो है वो जमहूरी वतन पार्टी, देयर आर सो मेनी पार्टीज मतलब एग्जिस्ट हमारे यहाँ करती हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में जो है बलोच नेशनल पार्टी, बीएनपी जिसे कहते हैं, बीएपी बलोच अवाम पार्टी। सो ये डिफरेंट पार्टीज हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, अनलाइक यूएस एंड यूके जहाँ पे मेजरली दो पार्टीज हैं। यूके में एक छोटी ग्रीन पार्टी जरूर एग्जिस्ट करती है, यूएस में एक छोटी पार्टी एग्जिस्ट करती है, बट मेजरली यही दो पार्टीज के अराउंड जो है ना गवर्नमेंट रिवॉल्व करती है।
पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे देखें तो शायद हमें पीटीआई पीएमएलएन नजर आती है कि वो नेशनल पार्टीज हैं, बट इवन वहां पर भी जो है ना, पीएमएलएन को अगर स्पेसिफिकली एनालाइज करें तो शायद हमें वो नजर आएगा कि वो ट्रू सेंस में नेशनल पार्टी नहीं है। पीटीआई की अगर बात करें तो उसको नेशनल पार्टी अब कहा जाता है, बिकॉज केपी में वो जीते, पंजाब में बहुत सी सीट्स ली, कराची में बहुत सी सीट्स जीती, बट इंटीरियर सिंध के अंदर पीटीआई ने कोई इतनी सीट्स नहीं जीती। इसी तरह से जो बलूचिस्तान के मेजर एरियाज हैं वहाँ पे बलोच नेशनल पार्टी, बलोच अवामी पार्टी इज प्रीडोमिनेंट। तो हमारे यहाँ पे बहुत सी पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, कुछ रीजनल पार्टीज हैं और कुछ नेशनल पार्टीज हैं। वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इनकंसीवेबल विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। अगर आपके मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो फिर कैसे आप इस मुल्क में डेमोक्रेसी को लेके चल सकते हैं? कैसे सिंपल मेजोरिटी कोई पार्टी एक्वायर करेगी और कैसे एग्जीक्यूटिव बनाया जाएगा? दिस इज इनकंसीवेबल। ठीक है, सो यू नीड पॉलिटिकल पार्टीज इन ऑर्डर टू हैव डेमोक्रेसी, इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट डेमोक्रेसी कीप्स ऑन वर्किंग। जनरल ज़ियाउल हक ने 1977 में पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया था। जब ज़ियाउल हक को उसके बाद फिर हैंग कर दिया गया पाकिस्तान में, तो 77 से लेकर 88 तक ज़ियाउल हक ने जो है ना वो रूल किया था एज द चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन 85 में ड्यू टू द पॉलिटिकल प्रेशर उन्होंने इलेक्शंस कराए, यानी 97 से 85 तक कोई इलेक्शंस नहीं हुए। 85 में बहुत ज़्यादा प्रेशर था फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड, फ्रॉम द पब्लिक, तो उन्होंने इलेक्शंस कराए, बट उन्होंने नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन कराए। नॉन पार्टी बेसिस का इलेक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर मैं, लेट्स से दानियाल, if he wants to participate in elections, I do not need to get membership of PTI or PMLN or PMLN. I can just go out and submit my nomination papers, and I can actually I will be allowed to sort of participate in elections. तो ये चीज जो है ना नॉन पार्टी बेसिस पे हुई। पाकिस्तान में आज भी आपने सुना होगा वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, वो वाली पॉसिबिलिटी आज भी एग्जिस्ट करती है, बट मेजरली पाकिस्तान में आज जो है वो पार्टी की बेसिस पे इलेक्शंस तो पार्टी बेसिस पे ही होते हैं और आप किसी न किसी पार्टी का पार्ट बनते हैं। इवन जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं वो भी बाद में किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं आफ्टर दे बिकम मेंबर्स ऑफ द असेंबली। पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस क्या है? नंबर वन इज फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। जैसे मैंने पब्लिक ओपिनियन पढ़ाते हुए आपको बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रैलीज करती हैं, प्रोसेशंस करती हैं, ऑफिस बनाती हैं, तो इस तरह वो पब्लिक ओपिनियन को फॉर्मुलेट करती हैं। दे एजुकेट पीपल थ्रू सेमिनार्स एंड देयर मैनिफेस्टोज। इज देयर essential for success of democracy. They are the link between the government and the public. They coordinate between organs of government. They ensure unity of people on agendas. They ensure culture of democracy through their rallies. तो ये 7 जो functions हैं ये fairly straightforward हैं. You should know them. You should remember them. ठीक है ना? And they are very important when you have to describe something about the political parties of the world or specifically about Pakistan. Now moving on to propaganda. So propaganda का जो word है ये आपने बहुत commonly सुना होगा. It is selected information, may be true or false, usually of political nature with an agenda and is propagated is called propaganda. So अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में फैला दी हो, तो बेसिकली आप प्रोपेगेंडा कर रहे होते हो। प्रोपेगेंडा को अक्सर समझा जाता है कि ये फॉल्स होगा, बट प्रोपेगेंडा कैन बी ट्रू। यू वांट टू क्रिएट सर्टेन, यू वांट टू स्प्रेड सर्टेन इंफॉर्मेशन, तो आप उस प्रोपेगेंडा यूज करते हो। हम इसकी अगर मैं आपको कॉमन एग्जांपल दूं, जो हमारे यहाँ पे सेलिब्रिटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल I want to give you a very good example about let's just say we talk about I don't know, for example, a story about a celebrity getting married to someone, right? अक्सर आप न्यूज में देखते हो कि जी वो इस सेलिब्रिटी की उस सेलिब्रिटी के साथ शादी हो गई है। अब ये नॉर्मली जो है ना ये प्रोपेगेंडा होता है। प्रोपेगेंडा इन द सेंस ये होता है कि आपने अपने व्यूअर्स को बढ़ाने के लिए, अपनी ऑडियंस को, अपनी फैन फॉलोइंग को बढ़ाने के लिए आप सर्टेन चीजें जो है, इट कुड बी ट्रू दैट सेलिब्रिटी माइट हैव मैरिड द अदर पर्सन, और इट माइट एज वेल नॉट बी ट्रू, बट आप एक हाइप क्रिएट कर देते हो। आप सोशल मीडिया के ऊपर, आप यूट्यूब के ऊपर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हो कि जी दिस पर्सन हैज गॉटन मैरिड। उससे क्या होता है कि आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती है, यू बिकम द टॉपिक ऑफ डिस्कशन amongst the people, amongst the public. So therefore जो पब्लिक रिलेशन मैनेजर्स होते हैं, पीआर मैनेजर्स जिसे कहते हैं सेलिब्रिटीज के, वो अक्सर प्रोपेगेंडा को यूज करते हैं in order to sort of disseminate information, in order to disseminate news.
ठीक है जी. So selected information may be true or false, usually of political nature with an agenda, and is propagated is called propaganda. It is not objective, it is a very subjective thing. आप एक subjective information जो है उसको relay कर रहे होते हो public के अंदर. It intends to evoke an emotional response. It appeals to your emotions, ठीक है ना. When you hear about a celebrity getting married to someone, it sort of plays with your emotions, and the agenda of propaganda is to evoke that emotional response in you. It does not intend to appeal to rationality. The genuineness of information is questionable. Real purpose is different from actual purpose. तो रियल पर्पस शायद आपको लगे कि ये इसलिए है कि हमें ये बताया जा रहा है कि सेलिब्रिटी किससे शादी होगी, बट एक्चुअल पर्पस शायद पब्लिसिटी करना हो, एक्चुअल पर्पस शायद फैन फॉलोइंग को बढ़ाना हो. तो इसलिए जो रियल पर्पस है वो एक्चुअल पर्पस से डिफरेंट हो सकता है. अब इसको पॉलिटिकल साइंस में इसकी एग्जांपल देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की हिस्ट्री के अंदर क्या एग्जांपल हमें नजर आती है, गवर्नमेंट्स की हिस्ट्री के अंदर क्या नजर आती है. तो हमने जर्मनी के अंदर ये देखा कि जो नाजिस थे उन्होंने प्रोपेगेंडा को एम्प्लॉय किया. जोसेफ गॉबलर ने द स्पेलिंग यहाँ पे जो है ना जोसेफ गॉबलर की, ये आप चेंज कर लेना, GOEBLER इज द करेक्ट स्पेलिंग. सो जोसेफ गॉबलर ने who was the in charge of propaganda, he evoked patriotism and make public join the cause. अब मैंने आपको बताया काफी दफा नाजी जर्मनी की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 1930s के अंदर नाजी पार्टी जो थी वो बहुत ज्यादा अपनी रेस के ऊपर सुपीरियोरिटी जो है वो प्रीच करती थी, और वो कहती थी कि जर्मन आर सुपीरियर रेस. और जैसे उन्होंने जूस को मारने की हिटलर ने बात की थी और उनके लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए थे और बहुत से जूस को मारा भी. और फिर वर्ल्ड वॉर टू के अंदर 1939 से 44 तक जर्मनी fought courageously, it fought ruthlessly, but it had to suffer a defeat. लेकिन 1939 से पहले का जो एरा था उसमें प्रोपेगेंडा, यानी वर्ल्ड वॉर टू से पहले हिटलर ने थ्रू यूजिंग जोसेफ गॉबलर उन्होंने प्रोपेगेंडा के थ्रू जो है ना अवाम को ये रियलाइज करवाने की कोशिश की कि हम जो है एक सुपीरियर रेस हैं, और उनके अंदर स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म जो है ना उसको उसको अवेकन करने की कोशिश की. और ये कोशिश की कि पब्लिक जो है उस कॉज में उनके साथ शामिल हो और नाजी पार्टी को जो है ना फुली सपोर्ट करे, और जो जो उनके मैनिफेस्टोज हैं उनको उनमें उनकी हेल्प करे. तो द आइडिया ऑफ किलिंग जूस, ठीक है ना, अब ये बहुत बड़ी बात है कि आप पूरे एक अलग रेस को ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसके ऊपर जो है ना वो उन्होंने प्रोपेगेंडा को यूज किया था टू इन्फ्लुएंस पब्लिक और टू गेट पब्लिक सपोर्ट. सोवियत गवर्नमेंट ने इट स्पॉन्सर्ड द रशियन फिल्म इंडस्ट्री टू मेक प्रोपेगेंडा फिल्म्स. ये सोवियत गवर्नमेंट ने जो है ये 1930s के अंदर बिफोर द वर्ल्ड वॉर ये किया. In 1980s, a new term known as public diplomacy was introduced. यानी प्रोपेगेंडा क्योंकि एक नेगेटिव टर्म समझा जाता था, तो इन्होंने एक नई टर्म यूएस के अंदर ये इंट्रोड्यूस कराई गई, पब्लिक डिप्लोमेसी, जहाँ पे आप पब्लिक का पैट्रियोटिज्म को इवोक करते हो, पब्लिक के इमोशंस को अपील करने के लिए सर्टेन टूल्स को यूज करते हो. तो पब्लिक डिप्लोमेसी का जो टर्म था वो इंट्रोड्यूस कराया गया. 20th century, all political ideologies used mass media to reach audience. ट्रम्प की अगर आप इलेक्शन कैंपेन देखो तो कैसे उसने, जैसे मैंने आपको बताया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, एंटी इमिग्रेंट सारी बातें. इसी तरह अमेरिका के अंदर एक वाइट सुप्रीमेसिस्ट एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम कू क्लक्स क्लैन कहते हैं, KU _KLUX _KLAN, जिसको ट्रिपल के भी कहते हैं. कू क्लक्स क्लैन जो था उसका बेसिकली एजेंडा ये था कि जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं, जो ब्लैक्स हैं, they are inferior to us and the white skin has superiority. तो ट्रम्प की जो पूरी कैंपेन थी ना वो ये थी कि how white supremacy needs to be established again and how we have to make America great again. तो वो सारी कैंपेन जो थी वो white supremacist के अराउंड रिवॉल्व करती थी, क्योंकि उन्होंने पूरा इलेक्शन की, so they have a प्रॉपर इलेक्शन कैंपेन टीम, ठीक है ना, इनकी पूरी टीम्स होती हैं और उन टीम्स ने बहुत ज्यादा रिसर्च की. एंड आई वाज लिसनिंग टू द चीफ इलेक्शन आईटी गाय ऑफ ट्रम्प्स कैंपेन, और उसने बताया कि कैसे उन्होंने हर स्टेट की पॉपुलेशन निकाली, उसमें से देखा कि वाइट कितने हैं, वहां पे एक्सट्रीमिज्म कितना ज्यादा है, और उसको फिर देखते हुए उन्होंने ना पूरी कैंपेन को डिजाइन किया. तो ये आप देखो कि किस तरह से ये सारा जो प्रोपेगेंडा है उसको यूज किया जाता है. 3 तरह के प्रोपेगेंडास होते हैं. एक होता है ब्लैक प्रोपेगेंडा जिसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है. एक ग्रे प्रोपेगेंडा विच इज हाफ ट्रूथ, एंड देन देयर इज व्हाइट प्रोपेगेंडा विच इज द करेक्ट इंफॉर्मेशन.
सो जैसे मैंने शुरू में कहा था, प्रोपेगेंडा कैन बी ट्रू और फॉल्स. तो फॉल्स इंफॉर्मेशन is called black propaganda, white propaganda is called the correct information is called the white propaganda. अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे प्रेशर ग्रुप्स को. अच्छा, प्रोपेगेंडा के ऊपर वैसे आज तक क्वेश्चन आया नहीं है. इफ एनीथिंग वुड कम, इट वुड प्रोबेबली बी a 10 marks note on the topic. So pressure groups. Haywood in his book Politics says that pressure groups are becoming increasingly important in developing states. ठीक है जी, डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर जो है वो प्रेशर ग्रुप्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं. इससे पहले डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर ऑलरेडी जो है वो प्रेशर ग्रुप्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रही है. और प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो बेसिकली उनको हम इंटरेस्ट ग्रुप्स भी कहते हैं. प्रेशर ग्रुप्स का मतलब ये है, अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं, अ ग्रुप विच फाइट्स फॉर अ कॉज and gets its message across by employing pressure techniques, pressure tactics. ठीक है जी, यानी कि प्रेशर ग्रुप्स का एक सर्टेन एजेंडा होता है. उस एजेंडा को इम्प्लीमेंट कराने के लिए वो जो गवर्नमेंट में जाकर लॉबिंग करते हैं और प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. Haywood in his book Politics says that pressure groups are becoming increasingly important in developing world. डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर ऑलरेडी प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो बहुत एक रिफॉर्म स्टेट फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. देयर आर ग्रुप्स, देयर आर स्पेसिफिक ग्रुप्स, दे हैव स्पेसिफिक नेम्स, दे हैव स्पेसिफिक लीडरशिप और एक सर्टेन वे में एक्ट करते हैं. जोसेफ शैम्पीटर ने इंटरेस्ट ग्रुप्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया. एंड्रयू हेवुड ने प्रेशर ग्रुप की डेफिनेशन दी कि अ प्रेशर ग्रुप इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल दैट एम्स टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज और एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट. Pressure groups seek to win or secure their interests through lobbying and pressure on the decision makers. Pressure group members influence the legislators and also executive. ना सिर्फ ये पार्लियामेंट को, लेजिस्लेचर को या कांग्रेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, बल्कि ये एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को भी इन्फ्लुएंस करते हैं. They offer financial support as well as promises of votes and later influence the government. आप ये देखो कि जो प्रेशर ग्रुप है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि यूएस के अंदर एक प्रेशर ग्रुप एग्जिस्ट करता है, which is called the AARP. So write this down in your notes. AARP, which is American Association of Retired Persons. अब ये जो अमेरिकन एसोसिएशन है ना, इसका काम ये है कि जो भी चीज हो, यानी कि जो भी पॉलिसी बनाई जाए वो रिटायर्ड पर्संस के बेनिफिट में हो. यानी अगर लेजिस्लेचर को ये कानून पास करता है कि जी हम पेंशन खत्म कर देंगे, तो ये जो ग्रुप होगा ना, ये उसके अगेंस्ट लॉबिंग करेगा, ये ऐसा बिल पास नहीं होने देगा. और अगर ऐसा बिल पास हो गया तो ये स्ट्रीट्स में जाके प्रोटेस्ट करेंगे. इनके पास ह्यूज सब्सक्राइबर्स होते हैं. यानी कि फॉर एग्जांपल 50-60 हजार बंदा इस ग्रुप को ज्वाइन कर चुका हुआ होता है. अब और इस ग्रुप की हर कॉज के ऊपर, अगर लेट्स ग्रुप डिसाइड करता है कि हमने ट्रम्प को वोट करना है, जो बाइडेन को वोट नहीं करना, तो सारे के सारे बंदे जो इस ग्रुप में सब्सक्राइबर्स हैं वो उसको वोट करेंगे. और फिर ट्रम्प क्या करेगा बाद में, when he will become the president, he will not make a policy which goes against their interest. So you understand my point कि how they sort of influence the executives by promising them for votes, या वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं. अगर वो फंडिंग करके किसी पार्टी को इलेक्शन जितवा सकते हैं, तो वो उससे अपने एजेंडा से अपने बेनिफिट की चीजें भी मनवा सकते हैं. मैं आपको पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में एक एग्जांपल देता हूं कि यहाँ पर आपने सुना होगा यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का, YDA जिसे कहते हैं. अब ये यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का एग्जैक्टली क्या पॉइंट्स हैं? इनके पॉइंट्स ये हैं कि डॉक्टर्स की सैलरीज को कंपेटिटिव बनाया जाए प्राइवेट सेक्टर के साथ. डॉक्टर्स को जिस तरह सिविल सर्वेंट जो यहाँ पे जो CSS करके आते हैं, उस लेवल की बेनिफिट्स दिए जाएं. CSS की तरह इनको जॉब सिक्योरिटी दी जाए, इनको अथॉरिटी दी जाए. तो अब ये जो यंग डॉक्टर एसोसिएशन है, ये इनके पास बहुत ज्यादा डॉक्टर्स जो है वो इस ग्रुप का पार्ट है. तो ये लोग थ्रू प्रोटेस्ट, थ्रू लॉबिंग, ये इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि इनके हक में पॉलिसीज बनाई जाए, इनके हक में बिल्स पास किए जाए. तो आप देखो कि कैसे प्रेशर ग्रुप्स का एक सर्टेन एजेंडा होता है, कोई भी एक एजेंडा इनको कंबाइन करता है और फिर ये उस एजेंडा के लिए फाइट करते हैं. They offer financial support, जैसे मैंने पहले कहा, as well as promises of votes and later influence the government. Pressure groups also direct leadership of political parties directly. Also target leadership of political parties directly. So for example, अगर यंग डॉक्टर एसोसिएशन का बंदा इमरान खान को डायरेक्टली अप्रोच करता है और उनका कोई एक डेलीगेशन 10 बंदों का जाकर इमरान खान से मिलता है, तो एसेंशियली वो अपनी डिमांड्स को जो है वो PTI की लीडरशिप को या PTI के चेयरमैन को कन्वे कर रहे हैं. Pressure groups are criticized for being influencers to protect interests of only specific groups.
अब इनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी होता है प्रेशर ग्रुप्स के ऊपर। वो क्रिटिसिज्म ये होता है कि एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट को प्रोपेगेट करते हैं और इनको जनरल ऑडियंस, इसको मैं कंपेयर करूंगा सिविल सोसाइटी के साथ। सिविल सोसाइटी जो है वो किसी भी इशू को उठा सकती है, किसी भी इशू के ऊपर वो वोकल हो सकते हैं। प्रेशर ग्रुप सिर्फ अपने उस डोमेन में रहते हैं, यानी अगर यंग डॉक्टर एसोसिएशन है तो वो सिर्फ डॉक्टर्स के जो राइट्स हैं उनके बारे में बात करेगी। जो आपका अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड पर्सन है, AARP, वो सिर्फ रिटायर्ड पर्सन के बारे में बात करेगा। इसी तरह से एसोसिएशन फॉर हार्ट डिजीजेस अगर कोई एक ग्रुप है तो वो सिर्फ हार्ट डिजीजेस के ऊपर बात करेंगे। तो इनका एक स्पेसिफिक जो है ना वो डोमेन होता है। दे मे बी वर्किंग अगेंस्ट द पब्लिक एट लार्ज एंड ओनली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन देयर ओन इंटरेस्ट। पाकिस्तान में अगर प्रेशर ग्रुप्स की एग्जांपल लें तो इसमें है ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन क्या करेगी कि जो गारमेंट्स जितने भी बनने हैं उसके लिए रॉ मटेरियल सस्ता किया जाए, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज लेके आए कि उनको सपोर्ट मिले, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को तरक्की दी जाए। टोबैको एसोसिएशन क्या करती है? टोबैको एसोसिएशन ये करती है, जैसे आपने सुना होगा कि पिछले साल कैन जस्ट गिव मी अ 30 सेकंड्स ब्रेक। अच्छा जी, सो यस गाइस, सो आई एम बैक। अच्छा, तो टोबैको एसोसिएशन की मैं बात कर रहा था। आपने सुना होगा पिछले साल एक न्यूज़ चली और वो न्यूज़ ये थी कि ओके, अच्छा जी, अच्छा गाइस, सो टोबैको एसोसिएशन क्या करती है? अब टोबैको एसोसिएशन का ये काम है जी कि पिछले साल जो मिनिस्टर थे, हेल्थ मिनिस्टर, आई थिंक हिज नेम वाज अमीर क्यानी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो व्हाट ही डिड वाज कि उन्होंने कहा कि एक सिन टैक्स इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, यानी कि जो भी टोबैको कंपनीज है पाकिस्तान में, जो बड़ी टोबैको कंपनीज है वो फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल है, पाकिस्तान टोबैको कंपनी जिसको बैट भी कहते हैं, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको। तो इन कंपनीज के ऊपर एक टैक्स लगाया जाए और और सिगरेट की प्राइसेस को और महंगा किया जाए। तो ये कंपनीज ये हमेशा प्रोटेस्ट करती हैं, यानी कि इनकी एक टोबैको एसोसिएशन बनी हुई है और वो ये कहते हैं कि सिगरेट के ऊपर टैक्स ना लगाया जाए। तो ये चीजें इसलिए करते हैं क्योंकि अगर टैक्स लगेगा, प्राइसेस बढ़ेंगी, तो सिगरेट की कंजम्पशन कम होगी, सिगरेट बिकेगा कम। तो इसलिए ये कंट्री जो है ना अपोज करती हैं किसी भी ऐसी पॉलिसी को। तो ये टोबैको एसोसिएशन का फिर ये मकसद ये है कि जो है ना ये सिगरेट्स के ऊपर टैक्स लगाया जाए। इसी तरह पाकिस्तान उलेमा काउंसिल है, ये कोई भी रिलीजियस इशू होगा उसके ऊपर एक स्टांस लेते हैं और फिर उसको अपोज करते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल जो है, ये जब मैंने कल आपको आई थिंक मेरी कल आपसे डिस्कशन हुई थी इस बैच के साथ कि मैं आपको बता रहा था कि जो, बल्कि हाँ आज सुबह ही मेरी आपसे डिस्कशन हुई कि जो 2008 में जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को जो है वो रिमूव किया गया पोस्ट से, तो पाकिस्तान बार काउंसिल खड़ी हुई और पाकिस्तान बार काउंसिल ने ये डिसाइड किया कि हाँ जी, हम अली अहमद कोर्ट, एतजाज एहसन के हम जो है इनके अगेंस्ट जो है वो बात, मतलब इनको रिस्टोर करने के लिए उन्होंने मुशर्रफ के ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया, जो कि उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव थे। फार्मर्स एसोसिएशन कि हमें जो है वो फर्टिलाइजर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाए, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। गवर्नमेंट को वो हमेशा लॉबी करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह यंग डॉक्टर एसोसिएशन की मैं बात कर चुका हूँ, टोबैको एसोसिएशन की मैं बात कर चुका हूँ। इन 20th सेंचुरी वी सी द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इंक्रीजिंग इन मेनी कंट्रीज। तो ये प्रेशर ग्रुप जो है वक्त के साथ साथ काफी इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ती जा रही है। टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स जो है अगर हम इसको डिफाइन करें तो इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप्स यानी कि ट्रेड एसोसिएशन जो बनाई जाती हैं, पब्लिक प्रेशर ग्रुप्स, इश्यूज पब्लिक कैन रिलेट टू, लाइक क्योटो प्रोटोकॉल लॉबिंग। अब क्योटो प्रोटोकॉल लॉबिंग ये थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने अभी पिछले साल अनाउंस किया कि वो जो है अपना करेंगे ये कि क्योटो प्रोटोकॉल में ये डिसाइड किया था कि कार्बन एमिशंस को जो है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस किया जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह फिर पेरिस एग्रीमेंट साइन किया गया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने यूएस को पेरिस एग्रीमेंट से निकलवा दिया है। अब उन्होंने कहा कि वी डू नॉट कमिट टू दिस क्लाइमेट चेंज के ग्लोबल एमिशन टारगेट्स। एमिशन टारगेट्स ये थे कि दुनिया का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए जो है ना टारगेट सेट कर दिए गए कि हर मुल्क ने ना इतने इतने डिग्रीज जो है ना वो कम करनी है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को। तो अब इसके अगेंस्ट जो है वो फिर पब्लिक बाहर निकली, जो लोग क्लाइमेट चेंज के एडवोकेट थे
और जो चाहते थे कि गवर्नमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज बनाए, क्लाइमेट फ्रेंडली पॉलिसीज बनाए, तो दे केम आउट ऑन द स्ट्रीट्स एंड दे फॉट फॉर देयर राइट्स। तो इसको कहता है कि ये पब्लिक प्रेशर ग्रुप्स जो हैं, ये एक टाइप है जो कि किसी इशू को लेकर जो है वो बाहर निकल सकती है। एटीट्यूड प्रेशर ग्रुप जो है वो दे आल्सो मोबिलाइज पब्लिक, यानी कि इनका मकसद ये होता है कि हम पब्लिक का ओपिनियन चेंज करें अबाउट सर्टेन इश्यूज, दे ट्राई टू मोबिलाइज द पब्लिक। देन देयर आर इंटर गवर्नमेंटल प्रेशर ग्रुप्स, यानी विद इन द गवर्नमेंट और विद इन द पॉलिटिकल पार्टी कुछ प्रेशर ग्रुप जो कि एक सर्टेन कॉज के ऊपर बात करते हैं। फॉर एग्जांपल पीटीआई के अंदर एजुकेशन को लेकर हो सकता है दो ग्रुप्स हों। एक ग्रुप ये कहे कि यार हमें फॉर एग्जांपल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देनी चाहिए, दूसरा कहे हमें नहीं देनी चाहिए। सो ये एक विद इन द गवर्नमेंट जो है वो प्रेशर ग्रुप्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। एंड नाउ वील मूव टू द फंक्शंस ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। सो फंक्शंस में सबसे पहले ये है कि एजुकेशन ऑफ पब्लिक ऑन इश्यूज। ठीक है जी, पब्लिक इज एजुकेटेड ऑन द इश्यूज कंसर्निंग दैट प्रेशर ग्रुप। Public is provided platform to participate in policy making through information provision. They provide information to the public, so they also become part in the policy making. They also help in policy implementation. They ensure political participation. Public associates itself with one or more pressure groups, and in that way the political participation is encouraged. And the last function is the articulation of specific interest. So specific interest, जैसे American Association of Retired Persons एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट आर्टिकुलेट कर रही है, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट जो है वो प्रोपेगेट कर रही है, इसी तरह से टोबैको एसोसिएशन एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट की बात करती है। सो ये सारी बातें हो गई प्रेशर ग्रुप्स के ऊपर। उसके बाद जो है ये पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। What are the agencies available for the formation and expression of public opinion? Also discuss the methods of influencing public opinion. Can public opinion be regarded as the fifth essential element of a modern democratic state? The answer to that is yes, it can be regarded as an essential element of modern democratic state. Methods of influencing public opinion के अंदर mass media, political socialization, ये सारी चीजें जो है मैं already discuss कर चुका हूँ। How public opinion is made and how it can be measured, इसमें भी mass media, political socialization ये सारी चीजें आ जाएंगी। Note on public opinion, discuss the importance of political parties in a modern state and assess their role as effective instrument of mobilizing public opinion। अब यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज और पब्लिक ओपिनियन दो टॉपिक्स को मिलाकर पूछा गया है, क्योंकि ये टॉपिक्स छोटे हैं कंपेयर टू फिलोसोफर्स, तो इनको फिर जो है ना आपस में कंबाइन करके पूछा जाता है। डिफाइन पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर फंक्शंस। इन योर व्यू व्हिच पार्टी सिस्टम इज सूटेबल फॉर पाकिस्तान पॉलिटिकल सिस्टम। ये सारा अच्छा, यहाँ पे जो विच पार्टी सिस्टम में आप एग्जाम्पल में मैंने आपको कहा कि जैसे यूएस और यूके में टू पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है, तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो कि यहाँ पे भी टू पार्टी सिस्टम अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसके ये बेनिफिट्स हो सकते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द डिफरेंट रोल्स प्लेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स इन मेकिंग पब्लिक पॉलिसीज। तो यहाँ पे दो टॉपिक्स को मिलाकर अगेन क्वेश्चन बनाया हुआ है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम कैन नॉट फंक्शन सक्सेसफुली विदाउट ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसमें पूरा जो पॉलिटिकल पार्टीज का नोट था, जो स्लाइड्स थी, उनको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। राइट अ नोट ऑन प्रेशर ग्रुप्स, अगेन दिस विल be covered by the lecture on pressure groups. So अब मैं आता हूँ आपके questions के ऊपर, and if someone wants to ask questions so they can just unmute and ask me as well. Floating your ideas is to consolidate democracy. Floating your ideas का मतलब ये हुआ कि जो आप democratic attributes build करते हो, जो democratic values आप और norms आप establish करते हो through your writing, through your protests, through your discussions, तो वो help करते हैं democracy को consolidate करने में। Can we give examples of how PTI made its manifesto? Yes, you can do that, Laiba, because ये जो होते हैं questions, इसके अंदर आपका बहुत ज़्यादा subjective opinion जो है वो पूछा जा रहा होता है। और ये topics मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूं कि ये हो सकता है कि questions repeat ना हो। जो आप newspapers वगैरह के अंदर चीज़ें पढ़ते हो ना, उससे आपने example ज़रूर इसके अंदर quote करनी होती हैं। जो आप opinion pages पढ़ते हो तो वो फिर आपको काफ़ी help हो जाता है। जी अली, you have a question? You have raised your hand. जी भाई साहब, पूछना था सेकंड बैलेट सिस्टम का कि सर ये हर कॉन्स्टिट्यूंसी में होता है कि ये यानी कि ओवरऑल इलेक्शन का होता है? सेकंड बैलेट सिस्टम जो है ना वो पूरे फ्रांस के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब होता ये है कि दो दफा वोटिंग जो है वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी टू कॉन्स्टिट्यूंसी वेरी करेगी। अगर आपका एक कैंडिडेट जो है वो और फर्स्ट बैलेट के अंदर ही 51% वोट्स ले लेगा तो फिर सेकंड बैलेट नहीं होगा। बट अगर वो नहीं ले पाता तो फिर जो टॉप टू होंगे उनके दोबारा वोटिंग कराई जाती है।
ठीक सर। और सर मैंने पूछना था एक क्वेश्चन में जो पब्लिक ओपिनियन के बारे में क्वेश्चन है सर, इसमें सर ये प्रोपेगेंडा के डाल सकते डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, बट हैं? डोंट ठीक राइट अ नोट ऑन प्रोपेगेंडा, इट शुड बी लाइक हाफ अ पेज ओनली। जब हाउ पब्लिक ओपिनियन इज मेड वाला जो आप चीज सवाल करोगे ना कि हाउ इट इज क्रिएटेड, व्हाट इन्फ्लुएंसेस पब्लिक ओपिनियन, उसमें आप प्रोपेगेंडा बिल्कुल डाल सकते हो जी। लाइबा थैंक यू सर। Assalamu alaikum, sir. Well, I wanted to ask, like, how much in depth we can talk about one political party? You know, like, do we have to say PTI, PMLN? Like, can we do that? Because I know, like, in current affairs and other subjects, we try to avoid it. Like, but I don't know how much and like, what are the do's and don'ts for such kind of question? So Laiba Dev, ab pata hai kya, there are so many opinions about it. There are so many people who would say do not write this or do not write that. देखो, you can write anything, but आप लिख क्या रहे हो ना, ये मैटर करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप पेपर में ये लिख दो कि जी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत अच्छी होती हैं और मैं पीटीआई को वोट दे के आई हूँ, नाउ दिस इज नॉट ऑन, this is not acceptable. You can mention about PTI as an objective person, like you can talk about PMLN, you can write the names of the leaders even, you can talk about PTI, but you do not have to tilt towards one party, या आपका अपना ओपिनियन उसके ऊपर नहीं होना चाहिए. आपको एज अ ऑब्जेक्टिव पर्सन बात करनी चाहिए. जब वो लोग आपको ये कहते हैं ना कि बी केयरफुल, जो आपने करंट अफेयर्स की बात की पाकिस्तान, वो ये बात एक्चुअली लोग नहीं साथ बताते हैं कि आप लिख सकते हो बट यू डोंट हैव टू राइट अगेंस्ट इट. कॉन्स्टिट्यूशन के या आर्मी के अगेंस्ट आप क्यों लिख के आओगे, वहां पर आपको नहीं लिखना चाहिए. एंटी पाकिस्तान, या आप ये कह दो, रेवोल्यूशनरी आइडियाज दे दो कि जी इस्लामिक रिपब्लिक नहीं होना चाहिए था पाकिस्तान को सेक्युलर होना चाहिए था. तो ये चीजें नहीं लिख सकते आप ये नहीं लिख सकते कि मैंने 2018 में पीटीआई को वोट दिया था, बिकॉज आप सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं. सिविल सर्वेंट जो है दे आर ए पॉलिटिकल इन नेचर, ठीक है ना. हम लोगों की कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं हो सकती हैं. तो इस तरह से आप जो है ना इन चीजों को लिख सकते हो, बट सो बी केयरफुल विद दिस, डोंट बी टू डरना नहीं है कि हम ये भी लिखें. ये भी देखो, अगर आपको एक चीज पता है, आपको अगर आपने पीटीआई का इलेक्शन मैनिफेस्टो पढ़ा हुआ है तो लिखो उसको, जरूर अपना नॉलेज शो ऑफ करो, बट बी स्मार्ट अबाउट इट, ठीक है. Any more questions? I don't know why many people have left the meeting room. I don't know whether it was too boring a lecture or not. Khair, chale ji, phir have a great week. If anyone has any question, they can message me as well, and then I'll see you inshallah next week. And I will call you, Rabia, and work after this lecture, as well as Masab Uddin. ठीक है जी, चले, thank you so much.